नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। और प्रदीप जी और मैं हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। सब लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं एक बार फिर उम्मीद करता हूँ कि ये दिवाली सुख लाए, खुशहाली लाए, शांति लाए, सबसे बड़ी बात ये है। एंड thank God that the fires of the Maratha reservation they've come down and it is now been transformed into a yelling match between various people, which is fine, which is a democracy. आप जबान से कुछ जो मर्जी कहें, लेकिन आगजनी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए. That is most important. What do you think, Pradeep? Exactly, sir. I mean, any kind of violence, any kind of aggression, any kind of hostility is not good for the state, for the country. जी दुरुस्त बात. You need to sit across the table, find out solutions, and within the democratic norms, there is always a solution. प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, देखिए साहब, आपके पास प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी. Yes, sir. And what does Narendra Modi always talk about? He talks about welfare of the entire country. कि किस प्रकार हम देश को अब नंबर 5 इकोनॉमी पे ले आए हैं. अगले साल के एंड तक या 2025 के बिगिनिंग तक, शुरुआत तक ये नंबर 4 इकोनॉमी बन जाएगी और 2027 तक we'll be the number 3 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. ये एक तरफ प्रधानमंत्री जी वो बात कर रहे हैं कि we'll have a space station very shortly. A space station, can you believe it? Fantastic. An Indian astronaut will walk Yes, on the moon. yes. मतलब एक भारतीय एस्ट्रोनॉट जो है वो चांद के ऊपर चलेगा साहब. ये बात हो रही है. मतलब भारत को एक महाशक्ति के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन है कि भारत को ट्रांसफॉर्म किया जाए इस तरीके से, which by the way is India's rightful place. Yes. In the Committee of Nations. And on the other hand, we have people who are still in the 50s and 60s. ये तो मतलब 50 और 60 के दशक में होता था कि मेरे इस कास्ट का इतना, उस कास्ट का इतना, उस कास्ट का इतना. मतलब ये क्या है? I find this rather sad, very frankly speaking. मुझे ऐसा लगता है कि we must transform ourselves. And the other thing also is, where I also feel personally sad is that a lot of people are attacking Mr. Devendra Fadnavis for what is happening with regard to the Maratha reservation. ये लोग भूल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में बतौर मुख्यमंत्री की भूमिका में अकेले मुख्यमंत्री हैं आज तक अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मराठा आरक्षण दिया है. Who was actually able to table a bill in the assembly for Maratha reservation, was actually able to give Maratha reservation and won the case in the Bombay High Court. अरे जिस आदमी ने ये सब किया है आपके लिए, आप मतलब I find this terrible. He's being targeted. He's being targeted by the opposition. He's being targeted. And from within his own party. Within his, yes. I mean, irrespective of whether or not the BJP agrees or not. But I think Devendra Fadnavis did a remarkable job when he was actually able to grant Maratha reservation. Nobody else has been able to do it. He was able to do it. And somehow the other, the MBA was not able to convince the Supreme Court about the social backwardness of the Maratha community, which is not Devendra Fadnavis's fault. Devendra Fadnavis उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे. जब मुख्यमंत्री थे तब तक बॉम्बे हाई कोर्ट में जीते. Sir, as a chief minister, you need to have the briefing of every important thing. You need to talk to your people. You need to see that they're following instructions, because you just can't leave it to people. I mean, this is very crucial and very जो बोलते हैं कि बहुत sacred thing था where reservations were concerned. जी दुरुस्त बात है. तो आप इसको you can't leave it to the bureaucrats alone. You need to talk directly, interact, find out what's happening at what date. Because you don't know which way the bureaucrats are actually. Exactly, sir. Exactly. और उनका एजेंडा और आपका एजेंडा एक है मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आपके लिए काम कर रहा है किसी और के लिए काम कर रहा है. दुरुस्त बात. And over here let's ask Mr. Pradeep Gowde. Pradeep Gowde साहब भारतीय जनता पार्टी के पहली बार नेशन नाउ में. प्रदीप गौड़े साहब नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार. आपको दीपावली की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. पूरी नेशन नाउ की टीम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की. मैं उम्मीद करता हूं दिवाली आपके लिए खुशहाल रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा. जी गौड़े साहब ये बताएं, जैसे प्रदीप जी और मैं अभी बात कर रहे थे
कि भाई अकेला एक मुख्यमंत्री है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र के इतिहास में, 1960 से लेकर के अभी तक का आप इतिहास निकाल लीजिए, जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस, जिसने असल में आरक्षण दिया मराठा समुदाय को, और कोई नहीं दे पाया। और तो और छोड़िए, बॉम्बे हाईकोर्ट में भी जीत गए, भाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जीत पाए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं थे उस वक्त। उसके बावजूद जान के देवेंद्र फडणवीस को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है? गौड़े साहब बताएं। नहीं, आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि महाराष्ट्र में पहली बार मराठा समुदाय को जो आरक्षण मिला वो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस ने दिया, और सिर्फ आरक्षण दिया नहीं कि जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके अंदर जिस तरीके से आरक्षण देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स जो होती है, बैकवर्ड कमीशन को एस्टैब्लिश करना पड़ता है, उसके रिपोर्ट और उसके बाद रिजर्वेशन, ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है ये फॉलो कर अगर महाराष्ट्र में पहली बार किसी ने मराठा समाज के I think Yes. his frame is frozen. I'm sure there's a network issue. You don't need to tell me, I can see it. I'm sure Mr. Pradeep Gowde will be back. जी, Yes, yes. बोलिए sir, please. देवेंद्र जी, आई एम ऑडिबल? यस यस। देवेंद्र जी ने पर्सनल फॉलोअप लेकर हाई कोर्ट में उस केस को, वो केस अपहेल्ड भी हुई और जी। हाई कोर्ट ने वो आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशनल भी ठहराया। उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो यहाँ पे उस वक्त सरकार बदल गई थी, और आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार स्ट्रिक्चर्स पास किए कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो एमवीए का गवर्नमेंट था यहाँ पे, उनकी ओर से लॉयर्स को पूरा ब्रीफिंग नहीं मिल रहा था, जो एक बहुत ही इसेंशियल एनेक्सचर्स थे गायकवाड़ कमीशन के साथ, वो एनेक्सचर जो मराठा समाज का जो सोशल बैकवर्डनेस है वो प्रूव करते थे, वो एनेक्सचर उस वक्त की जो एमवीए गवर्नमेंट थी उसने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस भी नहीं किया। तो उसकी वजह से ऐसी बहुत सारी खामियां, जो केस सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए था एमवीए गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, उसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण रह नहीं पाया। आरक्षण का एक मसला है ही, उसके साथ मराठा समाज को न्याय देने के लिए देवेंद्र जी ने यहाँ पे अन्ना साहेब पाटिल जो एक यहाँ पे कॉर्पोरेशन है उसको स्ट्रेंथ किया, सारथी जैसी जो संस्था है उसको स्ट्रेंथ किया। तो जैसा आपने शुरुआत में कहा कि एक तरह से बहुत अच्छे काम छात्रों के लिए, युवाओं के लिए और मराठा समाज के लिए, जिसको जस्टिस मिलने के लिए देवेंद्र जी ने यहाँ पे किए, लेकिन एमवीए गवर्नमेंट जो बीच में आया उसकी वजह से वो आरक्षण गया। अभी भी जो मूवमेंट चल रहा है, अभी भी जो मूवमेंट आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में चल रहा है, उसमें भी देवेंद्र जी की, भाजपा की यहाँ पे भूमिका स्पष्ट है कि हम मराठा समाज को न्याय देना चाहते हैं, हम मराठा समाज को आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन मराठा समाज को आरक्षण देते समय ओबीसी का जो आरक्षण है उसको कहीं ठेस नहीं लगनी चाहिए, ये हमारी यहाँ पे भूमिका है और उस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो अभी आरक्षण चल रहा है और आरक्षणकर्ता की जो मांग है कि उनको जो ओबीसी में ही एक कास्ट है कुणबी, उसका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, तो उसके बारे में भी सरकार क्लियर है कि जिनकी पुरानी जो नोटिंग्स है या फिर नोंद है उनको वो मिल जाएगा, उसके लिए कमिटी इस्टेब्लिश की गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसके अंदर भी अगर कोई स्कोप होगा तो उसके लिए क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की है, और अच्छी बात यह है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में एडमिशन भी हुई है उसका। तो हमारी यहाँ की जो गवर्नमेंट है, देवेंद्र जी है, भाजपा है, ये कमिटेड है महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए, लेकिन साथ में हमारा ये भी कहना है कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है यहाँ पे उसको कोई ठेस नहीं लगना चाहिए। आपने शुरुआत में बिल्कुल सही कहा था कि ये सब देवेंद्र जी को टारगेट किया जा रहा है, ये इसमें कोरी राजनीति है। महाराष्ट्र में या फिर देश महाराष्ट्र में भी और देश भर में भी कांग्रेस को ओबीसी के बारे में बोलने के लिए कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कांग्रेस तो ओबीसी का नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंडल कमीशन जिसने ओबीसी को फर्स्ट टाइम जस्टिस दिया, वो मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था 1980 में, तब कांग्रेस का गवर्नमेंट देश में आया था। 1980 से लेकर 90 तक 10 साल तक कांग्रेस मंडल कमीशन के रिपोर्ट पर बैठी रही, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो रिपोर्ट भी डबल नहीं किया। बाद में जब वीपी सिंह का गवर्नमेंट आया जिसको बीजेपी का समर्थन था, उस वीपी सिंह के गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन को लागू किया, और जो कमीशन को अपॉइंट किया था वो उसमें भी जनता पार्टी में भी उस वक्त का जनसंघ सहभागी था। आप ये सब इतिहास जानते होंगे, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये इतिहास जानते नहीं है। राहुल जी आज उठकर ओबीसी के बारे में बोल रहे हैं, तो वो 10 साल मंडल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बैठे। आप सीनियर पत्रकार है, आप जानते होंगे 27 अगस्त 1961 का स्वर्गीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू का एक पत्र है, उसमें उन्होंने आरक्षण की जो भर्त्सना की है वो शायद किसी और ने नहीं की होगी। और यहाँ तक
कि जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको नेहरू जी ने उस पत्र में सेकंड रेट सिटीजन कहा है। तो ये कांग्रेस की सामाजिक न्याय की भूमिका है क्या? जिन लोगों ने कभी सामाजिक न्याय को माना नहीं, सामाजिक न्याय के लिए कुछ किया नहीं, वो आज प्रश्न उठा रहे। बीजेपी सामाजिक न्याय के लिए कमिटेड है। हम चाहते हैं सभी के साथ न्याय हो, जो पिछड़े होंगे उनको न्याय देने के लिए बीजेपी काम करती रहेगी। प्रदीप जी। प्रदीप गावड़े जी, सुप्रिया सुले जी बहुत वोकल थे देवेंद्र फडणवीस जी के अटैक में, कंटिन्यूस अटैक करते रहे। बोले फडणवीस साहब ने मराठाओं के खिलाफ इनजस्टिस किया है, फडणवीस साहब ने धांगर कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस किया है, फडणवीस साहब ने लिंगायत समाज के खिलाफ इनजस्टिस किया। आगे जाके सुप्रिया सुले ने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन में भी फडणवीस साहब ने इनजस्टिस किया जहां मुस्लिम रिजर्वेशन है। तो सुप्रिया सुले इस प्रकार से अटैक करना तो आप कैसे देखते हो? फिर वो लॉ एंड ऑर्डर लेके बोले कि फडणवीस जी को रिजाइन देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो क्यों करे? हाउ डू यू सी दिस प्रदीप गावड़े साहब? नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि सुप्रिया सुले इस वक्त महाराष्ट्र की सबसे फ्रस्ट्रेटेड लीडर है। सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र के इस वक्त के सबसे फ्रस्ट्रेटेड लीडर है, क्योंकि इन दोनों लोगों से अपनी अपनी पार्टी छिटक गई है। उस पार्टी के जो मास लीडर्स थे, जिन्होंने पार्टी को बांधा था, पार्टी को बढ़ाया था, वो अब डिफेक्ट करके बाहर आए और पूरी पार्टी उनके साथ चली गई है। तो वो उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, जो सुप्रिया सुले मराठा कम्युनिटी के और धनगर कम्युनिटी के बारे में बोल रही है, तो शरद पवार जी 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। कई साल तक उनके रिमोट कंट्रोल वाली सरकार महाराष्ट्र में रही है। तो इन 40-50 सालों में शरद पवार जी ने मराठा समाज के लिए एक चीज भी की होगी जो सुप्रिया सुले आज बता सकती है, तो वो नहीं है। इसलिए सुप्रिया सुले कभी बताती नहीं कि शरद पवार जी ने मराठा समाज के लिए क्या किया, क्योंकि कुछ किया ही नहीं। दूसरी बात, वो धनगर कम्युनिटी के बारे में बोलती है, तो धनगर कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया जाए। ये जो पुराना जो ये रिकमेंडेशन था 1981 में, जब शरद पवार साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वो विड्रॉ किया। शरद पवार जी ने एसटी का जो रिजर्वेशन धनगर समाज को मिलना चाहिए, जो महाराष्ट्र सरकार का पुराना एक रिकमेंडेशन था, वो विड्रॉ किया। ये शरद पवार जी की राजनीति है। शरद पवार जी ने यहाँ पे ना कभी मराठा समाज को न्याय दिया है, ना कभी धनगर समाज को न्याय दिया है। और सुप्रिया सुले जी को मुझे नहीं लगता मराठा आरक्षण से कुछ लेना देना है, मुझे नहीं लगता उनको धनगर आरक्षण से कुछ लेना देना है, या फिर लिंगायत आरक्षण से कुछ लेना देना है। उनको राजनीति करनी है और उनका जो अपना एक आत्मीयता का विषय है वो है मुस्लिम आरक्षण। सुप्रिया सुले जी कभी कभी बोलते बोलते भूल जाती है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात चल रही है, धनगर आरक्षण की बात चल रही है। वो सिर्फ मुस्लिम आरक्षण के बारे में बोलती रहती है, जिसके बारे में वेरियस कोर्टों ने बार बार कहा है कि रिलीजन के आधार पर आरक्षण इस तरह से दिया नहीं जा सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के खिलाफ है। लेकिन फिर भी सुप्रिया सुले जी मुस्लिम राजनीति करना चाहती है। इस समय में भी वो कुछ मुस्लिम वोट मिल जाए, कुछ अपीजमेंट हो जाए, ये उनकी भूमिका है। तो महाराष्ट्र की जनता तो सुप्रिया सुले जी को अब सीरियसली नहीं लेती। और मुझे आशा है कि शायद अभी जिन पत्रकारों ने ये सब देखा है, पूरा ये उनकी हिस्ट्री पता है एनसीपी की, शरद पवार के अंदर सामाजिक न्याय के बारे में क्या रही है, तो मुझे नहीं लगता उनको इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार है। शरद पवार जी ने मराठा समाज को सिर्फ यूज किया है, धनगर समाज को यूज किया है, और वो अब महाराष्ट्र की जनता जानती है। इसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता कंसिस्टेंटली बीजेपी के पीछे है। अभी सुप्रिया सुले जी बोल रही है, उनके ये जो सब भाषण चल रहे हैं, 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत इलेक्शंस के रिजल्ट आए। लगभग 2350 पंचायत के इलेक्शन के रिजल्ट आए, उसमें से लगभग 750 पंचायत भाजपा ने अकेले ने जीती है, बीजेपी ने। और जो शिंदे साहब शिवसेना है, ओरिजिनल शिवसेना शिंदे साहब की, उन्होंने लगभग 450 जीती है। अजित पवार जी के ग्रुप ने लगभग 350 ग्राम पंचायत जीती है। और पूरा ये जो हमारा अलायंस है उसने मिलकर लगभग 1400 ग्राम पंचायत जीती है। और ये जो एमवीए है उनसे डबल है, और एमवीए की टोटल टैली जो है 600 समथिंग, भाजपा की अपनी टैली उससे ज्यादा है। तो महाराष्ट्र की जनता का साफ रुख है। महाराष्ट्र की जनता जानती है यहाँ पे मराठा समाज को न्याय कौन देने वाला है, यहाँ पे धनगर समाज को न्याय कौन देने वाला है, एससीज को न्याय कौन देने वाला है, एससीज को न्याय कौन देने वाला है। प्रदीप गावड़े साहब, आज ऑपोजिशन लीडर कांग्रेस विजय टिवारी जी कुछ बोल रहे थे कि मराठा कम्युनिटीज को ओबीसी में ना आकर, बिकॉज बोले ओबीसी कम्युनिटीज का रिजर्वेशन ऑलरेडी कंजेस्टेड है, बोले इतने सारे कम्युनिटीज का सब इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मराठा कम्युनिटी को न्याय नहीं मिलेगा। विजय टिवारी जी का कहना कि मराठा कम्युनिटी अगर ईडब्ल्यू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आप जाओगे तो वहां पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये विजय तिवारी जी पक्का कैसे देखते हो आप? बिकॉज पहले उन्होंने बोला था कि ओबीसी में आप आइए, ओबीसी से ले लीजिए,
फिर वो बदलते रहते हैं। अभी बोल रहे कि मराठा कम्युनिटी शुड टारगेट फोकस ऑन ईडब्ल्यूएस, उस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में उनको ज्यादा बेनिफिट, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। ये हाउ डू यू सी दिस गावड़े साहब? नहीं, कांग्रेस की जो राजनीति है महाराष्ट्र में वो मौसम की तरह बदल रही है, और वही विजय वडेट्टीवार जी के जो बदलते स्टेटमेंट है उससे वो आपको पता चलेगा। पहले वो कह रहे थे कि हाँ इनको सबको मराठा कम्युनिटी को ओबीसी में ले लीजिए, आज वो एग्जैक्टली अपोजिट बोल रहे हैं। उनके कुछ नेता अलग बोलते हैं, कुछ नेता अलग बोलते हैं, लेकिन उसमें गौर करने की एक बात और है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने दिया है, हमने अभी कुछ दिनों पहले उसकी आंकड़ेवारी दी है कि महाराष्ट्र में ये जो ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है उसमें से 1% से ज्यादा बेनिफिट मराठा समुदाय को मिला है। यानी महाराष्ट्र में भी जो ईडब्ल्यूएस के जो रिजर्वेशन था उसके दायरे में भी मराठा समाज को न्याय देने का काम मोदी जी ने किया है, ये मराठा समाज जानता है। तो वो 8% रिजर्वेशन, 10 में से 8% जॉब्स मराठा कम्युनिटी को महाराष्ट्र में मिली है। बाकी ये तो बात है कि विजय वडेट्टीवार जिस तरीके की राजनीति रोज चलती रहती है उस तरीके से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन इसमें वो यहाँ पे चाहते हैं कि दो समुदाय एक दूसरे के सामने आए, जो कि महाराष्ट्र में भाजपा नहीं चाहती, आम जनता नहीं चाहती कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के अगेंस्ट खड़ा हो। कांग्रेस लेकिन प्रदीप गौड़े साहब ये बात तो ठीक है, समुदाय के सामने खड़ा हो और कुछ अपनी राजनीतिक रोटी वो सेक सके, लेकिन वो होगा नहीं जी। इसमें देखिए कोई आर्गुमेंट में मतलब आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप गलत बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेरी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है कि इस प्रकार डेडलाइन दे देना, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कोई भी सरकार चल सकती है। सीधी बात है। अब जैसे देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब ने जब मराठा आरक्षण दिया तो कोई डेडलाइन के तहत नहीं दिया, जितना समय लगा उन्होंने समय लिया, बहुत अच्छे तरीके से सारे डिपार्टमेंट को कंसल्ट करके, लीगल डिपार्टमेंट को, सब लोगों को अंदर बिठा करके, सोशली बैकवर्ड कैसे हैं मराठा वो सब दिखा करके लिया। अब आप अगर ये कहेंगे कि अगर 24 दिसंबर तक नहीं मिला तो हम बम मुंबई को जैम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर 2 जनवरी तक नहीं हुआ तो फिर देखो क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि दिस इज करेक्ट। मुझे लगता है, वेरी फ्रैंकली, दिस इज माय सजेशन टू यू, मैं देश की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति बहुत सालों से देख रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मनोज झरंगे पाटिल साहब जो हैं और मराठा आरक्षण में जितने भी लोग इस वक्त आज की तारीख में इन्वॉल्व हैं, उन सबको जा करके ये समझाना पड़ेगा कि भैया आपको आरक्षण मिलेगा, उसमें जो भी वक्त लगे हम आपको ब्रीफ करते रहेंगे कि हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन ये डेडलाइन तो बिल्कुल ऐसे है कि धमकी की तरह बंदूक रख दी सर पे कि यार ये इस डेट तक करो। आपको क्या लगता है गावड़े साहब, आप बताएं। नहीं, सही बात कही है आपने, बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, मराठा समाज को अगर आरक्षण देना होगा तो हमको राजनीति करनी नहीं है। अगर हमको राजनीति करनी होगी तो हम ये बोल देंगे कि ठीक है, आपने जैसा कहा वो वैसा हम लिख के देते हैं, और फिर वो अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, वो वहां पे वो उसको वैलिडिटी रहेगी नहीं रहेगी वो पता नहीं। हम चाहते हैं कि मराठा समाज को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसके लिए जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आप जानते हैं बैकवर्ड कमीशन होगा, बैकवर्ड कमीशन का रिपोर्ट होगा, उसके बाद लेजिस्लेशन होगा, ये सब जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरा करके ही रिजर्वेशन मिलेगा, और वही रिजर्वेशन टिकेगा, वही रिजर्वेशन आगे जाके कोर्ट में टिक जाएगा। क्योंकि उसका एक आपको उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि 2014 का जो महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ था, उससे पहले भी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक रिजर्वेशन दिया था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के आधार पर दिया नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की थी। उसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, वो हाई कोर्ट में भी नहीं टिका और वो कैंसिल हो गया, हाई कोर्ट में ही उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो ये हम नहीं करना चाहते। हमारे लिए मराठा रिजर्वेशन जो है वो इलेक्शन का, वोट बैंक का, वोट का इशू नहीं है। हम चाहते हैं इस समुदाय के साथ न्याय होना चाहिए। उसके लिए ऐसा हो सकता है, अभी समुदाय बहुत सालों से रुका हुआ है, हम जितना हो सके उतना एक्सपीडिएट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीडिएट करने के चक्कर में हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं होगा और बाद में वो फिर मराठा समुदाय के लिए ही डिट्रीमेंटल प्रूव हो जाएगा। इसलिए हमने बहुत क्लियरली सीएम साहब ने, डीसीएम साहब ने इस विषय में कहा है कि हम क्यूरिटी पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और दूसरा एक कर रहे हैं कि जिनकी पुरानी नोंद मिल रही है कुनबी की, उनको उसका सर्टिफिकेट मिले, वो एक्सपेडिएट कर रहे हैं। तो जो आरक्षण हम देना चाहते हैं वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉलो करके देंगे,
जिसका उपयोग होगा वो आरक्षण नहीं, ये बात तो ठीक है, ये valid इसमें रहेगा। देखिए साहब, और इसमें हम कोई ये भी- विवाद नहीं है। प्रदीप गावड़े साहब, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन झारंगे पाटिल साहब को समझाएगा कौन कि ये डेडलाइन देना बंद करो भाई, ये बार बार डेट देना बंद करो यार, काम हो रहा है ना। मेरा ये कहना है, देखिए साहब ऐसा है, सरकार काम कर रही है, हर एक कोई काम कर रहा है। कोई भी आज की तारीख में, जैसे पिछले दिनों राज ठाकरे जी ने कहा कि भाई कोई भी पार्टी आज की तारीख में, कोई भी राजनीतिक संगठन आज की तारीख में मराठा आरक्षण के विरोध में नहीं है, कोई नहीं है। तो कोई नहीं है तो तकलीफ क्या है, लोगों को काम करने दो। लेकिन दूसरी बात यहां पर एक और उत्पन्न होती है कि जिस प्रकार छगन भुजबल साहब ने जो कुछ भी कहा, मतलब उनको क्या हो गया है, ये कहने की जरूरत क्या पड़ गई, बताएं गावड़े साहब, क्या हो गया उनको? क्या बेचारे अपने आप को पीछे बैकग्राउंड में मतलब फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया उनको? आप लोगों ने उनसे अच्छी तरह बात नहीं करी, मुझे लग रहा है वो हर्ट, मुझे लग रहा है अंदर से हर्ट हो गए, ठेस पहुंचाई आपने उनको। जी गावड़े साहब। नहीं, छगन भुजबल साहब जो है वो सीनियर नेता है और उन्होंने अपनी भूमिका कुछ रखी है, अपनी कुछ बातें रखी है। भारतीय जनता पार्टी हर उस बात से सहयोग रखेगी या फिर उससे सहमति रखेगी, ऐसी कुछ बात नहीं है। जो मुझे समझ में आया है वो भी यह कहना चाहते हैं कि आप मराठा समुदाय को अलग से रिजर्वेशन दीजिए। आज जो उन्होंने कहा कि अलग से रिजर्वेशन दीजिए और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसको कोई ठेस मत पहुंचाइए। ये मुझे लगता है वो जो कह रहे हैं, उनके जो कुछ 4-5 स्टेटमेंट हो गए, उनका जो क्रक्स था वो ये है और यही सबकी भूमिका है। मतलब स्टेटेड भूमिका जो महाराष्ट्र में सभी पॉलिटिकल पार्टियों की है वो यही है कि मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को, ओबीसी के रिजर्वेशन को कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। अब ये स्टेटेड भूमिका सबकी है, लेकिन कभी कभी वोट बैंक के लिए कभी कभी एक कास्ट को दूसरी कास्ट के सामने खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, कभी कभी कुछ अलग स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता जो है बहुत सूझने है। आपने पिछले सवाल में पूछा था कि जरांगे पाटिल जी को कौन समझाएगा, मुझे लगता है मराठा समाज का जो युवा है वो बहुत समझदार है, वो ये चीजें जानता है और कहीं ना कहीं वो भी ये जानने लगे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से ही जाना पड़ेगा। मराठा समाज के जो स्कॉलर्स है, जो जस्टिस रहे हैं या फिर इस विषय के जो ज्ञाता है, वो सभी यही बात अभी मीडिया में बोल रहे हैं और ये बात सभी को बता रहे हैं कि अगर हमको परमानेंट सॉल्यूशन इसमें कुछ चाहिए होगा तो इस प्रकार से ही जाना पड़ेगा, अल्टीमेटम से या फिर डेडलाइन से कुछ होगा नहीं। तो मुझे लगता है समाज भी अभी ये एक्सेप्ट करेगा। प्रदीप गावड़े साहब, बड़ी बच्चू कडू ने कहा, बच्चू कडू ने आज ही स्टेटमेंट दिया कि शरद पवार साहब के लेटर के माध्यम से ओबीसी के 52 अलग अलग सेगमेंट्स को मान्यता मिला। तो पवार साहब अगर मराठा का भी उसमें नाम लिखता था तो हो जाता था, मराठा समाज को भी न्याय मिलता था। पर बच्चू कडू जी का इस वक्त में शरद पवार जी का प्रशंसा करना या आलोचना करना हम लोग कैसे देखें, आप भी बता दो कि क्या चीज है कि आज शरद पवार जी का नाम बच्चू कडू ने इस प्रकार से कहा कि आपके लेटर के वजह से 52 जो अलग अलग सेगमेंट है ओबीसी को रिकॉग्नाइज हुआ, उनका रिजर्वेशन मिला। बिकॉज आपका नॉलेज बहुत अच्छा लग रहा है इस विषय में। नहीं, मैंने शुरुआत में ही कहा कि शरद पवार जी को अगर मराठा समाज को रिजर्वेशन वो देना चाहते थे तो बहुत पहले दे सकते थे, लेकिन 30-40 साल में उन्होंने मराठा समाज के रिजर्वेशन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। तो ये बात जो बच्चू कडू जी ने आज कही है वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तब महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री थे वो शरद पवार साहब थे, तो उस वक्त उन्होंने मराठा समाज को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया? और छोड़िए, एक मिनट मैं जरा याद दिला दूं अपने दर्शकों को। मंडल कमीशन जब इंप्लीमेंट हुई है 1990 में, एंड बाय द वे द भारतीय जनता पार्टी was supporting the VP Singh government from outside. VP Singh government, yes. From outside. Now, अगर आप मंडल कमीशन, वो वाली मंडल कमीशन अगर आप पढ़ें जो 1980 की है रिपोर्ट, बाय द वे 1990 की नहीं है, 1990 में इंप्लीमेंट हुई है 11 साल के बाद, उसमें मराठा समुदाय को फॉरवर्ड कम्युनिटी कहा गया है। उस वक्त शरद पवार जी को एज लीडर ऑफ द मराठास एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उनको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, ये लेना चाहिए था कि भाई ये मराठा तो बहुत बैकवर्ड है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला प्रदीप गावड़े साहब, तो ये क्या है? मतलब मेरी समझ के बाहर है ये, बताएं। नहीं, शरद पवार जी ने महाराष्ट्र में बहुत समय तक कास्ट पॉलिटिक्स किया है और इस कास्ट पॉलिटिक्स में उन्होंने कभी भी मराठा समुदाय को न्याय नहीं दिया। लेकिन आज जबकि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में खत्म हो गई है
उनकी पार्टी पूरी तरह से उनके हाथ से निकल गई है, तो अभी शरद पवार जी कुछ पॉलिटिकल स्टंट्स करते हैं और अभी कुछ ये वो दिखाना चाहते हैं कि मैं मराठा समाज के साथ हूँ और मैं आरक्षण का हितैषी हूँ। लेकिन पवार साहब का जो हिस्ट्री है वो उससे पूरा उलट है। पवार साहब ने आज महाराष्ट्र की जनता को ये बताना चाहिए कि वो जब सीएम थे 4 बार महाराष्ट्र में, तो उन्होंने मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए क्या किया, वो ये बता नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। रिजर्वेशन के आगे भी मराठा समाज के सामाजिक न्याय के लिए जैसा देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत काम किया, वैसा कुछ काम शरद पवार जी ने कुछ किया नहीं है, उसकी वजह से वो भी नहीं बताते। लेकिन अब जबकि सत्ता हाथ से गई है, शरद पवार की मुसीबत बड़ी है, शरद पवार जी की और सुप्रिया सुले की, ना कि सत्ता उनके हाथ से गई है, पार्टी भी हाथ से गई है। तो आज की तारीख में शरद पवार जी को और उद्धव ठाकरे जी को ये जो कोई भी पॉलिटिकल इशू होगा वो उनके लिए अपने अस्तित्व का इशू है। शिवसेना की यानी अर्स्टवाइल जो शिवसेना थी, उनकी सामाजिक न्याय की भूमिका मुझे लगता है सभी वरिष्ठ पत्रकार जानते हैं। उन्होंने कभी मराठा आरक्षण का कभी कुछ ये नहीं किया। लेकिन आज उद्धव ठाकरे बोलते हैं, उद्धव ठाकरे जालना में जाके मनोज जरांगी से मिले, शरद पवार जी जाके मिले। इन दोनों पार्टियों का सामाजिक न्याय के लिए कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र में 0 रहा है। सामाजिक न्याय का नाम कभी इन्होंने लिया नहीं है। मराठा समाज को छोड़िए, बाकी का कभी कुछ किया नहीं है। तो शरद पवार जी अब जो कुछ चल रहा है वो एक अपनी अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। पॉलिटिकल वो अभी महाराष्ट्र में नॉन प्लेयर बन गए हैं। तो गावड़े साहब दिखाने के लिए ये सब चल रहा है। प्रदीप गावड़े साहब, राहुल गांधी, नेशनल पॉलिटिक्स में राहुल गांधी जी बार बार जातीय जनगणना जातीय रोज, यानी आज जितने भी मीटिंग्स वो शायद वो एमपी में ले रहे, राज्यसभा राजस्थान में ले रहे, सब जगह एक ही है, जातीय जनगणना। बोले कि मैं जब जातीय जनगणना की बात करता हूं, अब मैं बोलता हूं कि 84% ओबीसी एससी एसटी सब मिला के न्याय मिलना चाहिए, एम्पावर होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। तो मोदी साहब बोलते हैं कि सबसे बड़ा सेगमेंट गरीबों का है, मैं गरीबों के लिए काम करूंगा। और आज 2 दिन पहले मोदी साहब खुद बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी हूं, मुझे बीजेपी ने प्रधानमंत्री बना दिया, हमारा करीबन 27 कैबिनेट मिनिस्टर्स ओबीसी के हैं, 85 एमपीज जो है वो ओबीसी के हैं, 365 एमएलएज। तो बोले कि अभी मोदी साहब ये क्यों बोल रहे हो ओबीसी? तो ये कैसे, राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट कैसे देखते हो आप गावड़े साहब? राहुल जी को ना ही ओबीसी को बारे में बोलने के लिए कुछ अधिकार है, ना ही पिछड़ों के बारे में बोलने का कुछ अधिकार है। और राहुल जी अभी जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा 2011 का जो सेंसस हुआ वो जातीय जनगणना ही हुई थी। लेकिन 2011 से लेकर 2014 तक भारत में कांग्रेस का गवर्नमेंट था, तो फिर उन्होंने वो जातीय जनगणना जो की थी वो पब्लिक क्यों नहीं की? और उसके माध्यम से 2011 के सेंसस जो उन्होंने किया था उसके माध्यम से 11 से 14 को लेकर उन्होंने कोई सामाजिक न्याय की पहल क्यों नहीं की? ये तो लेटेस्ट उदाहरण हो गया। मैंने प्रदीप गावड़े साहब वो जरा अनफेयर है, वो आप जरा थोड़ी सी अनफेयर बात कर रहे हैं। वो 2011 का जो सेंसस था उसका जो डेटा कलेक्ट करने के लिए 2 या 3 साल लग गए, करेक्ट है। और वो पूरा कलेक्ट होकर के स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट जो है उसके पास आया फरवरी मार्च में, और तब तक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो हर एक को ये लग रहा था कि जैसी नई सरकार आएगी वो उसको रिलीज करेगी। लेकिन नई सरकार ने उसमें बहुत त्रुटियां देखी। उन्होंने ये देखा कि इसमें डेटा में बहुत कुछ मिस्टेक्स हैं, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसकी वजह से आज तक उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं। लेकिन अगले साल तो सेंसस होने वाला ही है, वो तो पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया है, उसमें क्या है? तो वो तो एम्पेरिकल और बायोमेट्रिक डेटा के हिसाब से होगा ही होगा, उसमें क्या है? बोलिए गावड़े साहब। कल अमित शाह जी ने भी कल ये बात स्पष्ट की है जी कि भारतीय जनता पार्टी बाय प्रिंसिपल कास्ट सेंसस के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं इसके ऊपर राजनीति ना हो। कांग्रेस को सडनली 70 सालों के बाद आज अगर ओबीसी याद आ रहा है, पिछड़ा याद आ रहा है, तो वो वोट के लिए है, क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हुई है। तो वो डेस्परेशन में वो कुछ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। तो नहीं करेंगे क्या सर? सामाजिक तो क्या नहीं करेंगे सर? क्या बात सामाजिक न्याय की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो। ये अभी मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, जैसे आपने अभी कहा था कि 1980 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था, उसके बाद 4 साल तक इंदिरा गांधी पीएम थी, 5 साल तक राजीव गांधी पीएम थे।
तो उन्होंने मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया क्या? इम्प्लीमेंट तो छोड़िए, टेबल भी नहीं किया। सर पढ़ा ही नहीं था, मंडल कमीशन किसी का जो ने पढ़ा भी नहीं था। मंडल कमीशन जो गठित हुआ था जी। वो भी जनता पार्टी की समय में हुआ था, जिसमें जी। आप जानते हैं जनसंघ एक हिस्सा था। जी। उसके बाद मंडल कमीशन को जब इम्प्लीमेंट किया था वीपी सिंह साहब की गवर्नमेंट ने, जी, जन मोर्चा जी, की गवर्नमेंट ने, करेक्ट। तो उस गवर्नमेंट को भी बाहर से जो समर्थन था वो भारतीय जनता पार्टी के जी। समर्थन से वो सरकार सत्ता में थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में सिर्फ बात नहीं की है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है। लेकिन प्रदीप गावड़े साहब, आपको आश्चर्य क्यों होता है कि कांग्रेस ऐसी बात कर रही है? अरे भाई, सब ओबीसी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो ओबीसी वोट है आपका, तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कि ये नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? बोलना तो पड़ेगा ना प्रदीप गावड़े साहब। वो ऑपोजिशन में है, आपकी तारीफ थोड़ी करेंगे। आप भी उनकी तारीफ करनी शुरू कर दीजिए, वो फिर आपकी तारीफ करेंगे। आप उनको क्या क्या बुलाते हैं, पप्पू बुलाते हैं, पता नहीं क्या कुछ बुलाते हैं बेचारे, कभी रावण बोलते हैं, रावण कभी रावण बुलाते हैं। तो क्या वो आपका समर्थन करेंगे प्रदीप गावड़े साहब? अभी आगे क्या, चलिए ये सब बात तो हो गई। अभी आरक्षण की जो स्थिति है, अभी काम चल रहा है, लेकिन आपके मुताबिक ये आपकी व्यक्तिगत राय मैं पूछ रहा हूं, पार्टी के हिसाब से नहीं, आपको क्या लगता है कि दिसंबर 24 तक हो जाएगा क्या? मुझे नहीं लग रहा, वेरी फ्रैंकली, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने जैसे बार बार कहा है कि हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को फॉलो करके रिजर्वेशन देना चाहते हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो दिया जाए, मतलब क्यूरिटी पिटीशन के माध्यम से हो या फिर से एक बार रिजर्वेशन को टेबल करके हो। तो हम इस मसले को पूरी तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। अभी ये टाइम बाउंड इस तारीख तक होगा क्या, उस तारीख को तक होगा क्या, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं और ये मैं वादे के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र में मराठा समाज को न्याय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, देवेंद्र जी फडणवीस दे सकते हैं, और ये महाराष्ट्र की जनता भी भली भांति जानती है और इसकी वजह से उनके ऊपर विश्वास है। और इस विश्वास को पूरी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट दुरुस्त बात, आई डोंट एग्री, आई डोंट डिसएग्री सर, आई डोंट डिसएग्री। इसीलिए मैं हर एक से ये सवाल पूछता हूँ, हमारे जितने भी नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है, बाकी सब लोग, में हर एक से ये सवाल पूछता हूँ, अरे सीधी तरह देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। 103 सीट आपके पास है, 103 एमएलए आपके पास है, जो 103 एमएलए वाला है उसको आपने डिप्टी सीएम बना रखा है। सीधी सादी बात है, महाराष्ट्र की जनता, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की, जिसमें अंदर से आप भी मेरे साथ सहमत होंगे, भले ही आधिकारिक तौर पर आप ये बोल ना सकें, लेकिन आपको लगता नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस इज द बेस्ट मैन फॉर द जॉब? सबसे बढ़िया आदमी वही है, उनको बना दीजिए मुख्यमंत्री, नहीं तो ये काम नहीं होगा साहब। प्रदीप गावड़े साहब, महाराष्ट्र की हमारी जो वर्तमान सरकार है, जैसा देवेंद्र जी ने भी बार बार कहा है कि 24 तक एकनाथ जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और आज सरकार बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, काम कर रही है। देवेंद्र जी एक सक्षम नेता है, 5 साल तक उन्होंने चीफ मिनिस्टर के रूप में जो काम किया है वो महाराष्ट्र की जनता के सामने है। उसकी वजह से उन्हें महाराष्ट्र की जनता बहुत प्यार करती है और उन्होंने प्रूव किया है। देवेंद्र जी एक एबल्ड प्रूव्ड लीडरशिप है। लेकिन आज की जो हमारी स्थिति है वो ऐसी रहेगी 24 तक एकनाथ जी के। गावड़े साहब आई वांट टू नो, ये ग्राम पंचायत जो इलेक्शन हो गया उनके अंदर रहेगी, ग्राम पंचायत में हमको समझना पड़ेगा कि हम सत्ता, ग्राम पंचायत जो इलेक्शन हो गया, क्या ये इंडिकेटर है 2024 में क्या होने वाला है? बिकॉज ग्राम पंचायत इलेक्शन से पहले सर्वेज अलग अलग बोल रहे थे कि शरद पवार साहब के नेता यहाँ पर आए, शरद पवार साहब के वोटर्स नहीं आए, उद्धव ठाकरे जी के नेता लोग यहाँ पर आए, उद्धव ठाकरे जी का 16% वोट शेयर इस तरफ नहीं जाएगा, वो बाला साहब ठाकरे जी का है, वो उद्धव जी के रहे। तो ये ग्राम पंचायत में जो त्याग और बलिदान देवेंद्र फडणवीस ने दिया, वो सक्षम तरीके से लोगों ने माना और नंबर 1 पार्टी करके बीजेपी को ग्राम पंचायत चुना। मगर कांग्रेस को जब पूछेंगे तो बोलते बी फॉर्म दिया क्या, ए बी फॉर्म दिया क्या, ये क्या? तो कैसे, इज इट एन इंडिकेटर गावड़े साहब, इज इट एन इंडिकेटर 2024 में ये पूरा शिफ्ट एकदम परमानेंट शिफ्ट है, नेता भी आ गए, वोट शेयर भी आ गए? गावड़े साहब, महाराष्ट्र में भी जो अभी पंचायत के इलेक्शन हो गए उसके जो रिजल्ट्स आए वो महाराष्ट्र की जनता का मूड क्या है उसके बेस्ट इंडिकेटर है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में कुछ सर्वे किए गए और उसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया कि बीजेपी पीछे है, एकनाथ जी की शिवसेना पीछे है, अजित पवार जी पीछे है। लेकिन बेस्ट जो पॉलिटिकल सिनारियो है या फिर जो ग्राउंड पे जनता का मूड है वो कल के इलेक्शन रिजल्ट्स के से प्रूव हुआ है। और इस इलेक्शन में लगभग 78% वोटिंग हुआ था, वोटिंग हाई हुआ है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा यश मिला है। आप जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में भी या फिर यहाँ पे भी शहरों की पार्टी कहा जाता था,
अर्बन इलाकों की पार्टी कहा जाता था। बनियों की ये पार्टी कहा इलेक्शन जाता के जो था। रिजल्ट्स है, जी। ये इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है, उससे ये साबित होता है कि ग्रामीण इलाकों में भी महाराष्ट्र की जनता में कैसी पेट भारतीय जनता पार्टी की बैठी है। उसके दो कारण है। एक जो किसान सम्मान योजना है केंद्र की, जिसमें 6,000 रुपए किसान को मिलता था, उसमें महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अपने 6,000 और ऐड करके उसको किसान महासम्मान योजना किया है। अब महाराष्ट्र के किसान को 12,000 रुपए प्रति वर्ष मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना थी। दूसरी जो ये किया हमने कि यहाँ पे 1 रुपए में हम सबको बीमा दे रहे हैं, फसल बीमा दे रहे हैं, उसका लाभ यहाँ पे जी। बहुत किसानों को हुआ। और पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें किसानों को बीमा नहीं मिल रहा था, किसानों को फसल बीमा नहीं मिल रहा था। इस बार रिकॉर्ड बीमा मिल रहा है लोगों को, और इसका सीधा सीधा लाभ किसानों को हो रहा है, और वो अभी वोट्स के जरिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यही जनता का मूड है। ये मूड आगे जाके बढ़ेगा। महाराष्ट्र में जो लोकसभा का चुनाव होगा या फिर विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें बहुत बड़े तरीके से महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के पीछे रहे। प्रदीप गावड़े साहब, ये जो 1 रुपए बीमा वाली जो आपने बात करी, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। वक्त जरा खत्म हो गया हमारा, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पहली बार आप यहाँ पर आए और जिस स्पष्ट और बिल्कुल क्लियर तरीके से आपने अपनी बात को रखा है, उसके लिए आपको साधुवाद। जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। प्रदीप गावड़े साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक दिन और भी बात करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी को क्यों मुख्यमंत्री आप लोग नहीं बना रहे। सीधी बात है, क्योंकि हम लोग तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो प्रदीप गावड़े साहब, आपको एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवारजनों को, सबको आपके घर में खुशहाली आए, प्रॉस्पेरिटी आए, खूब धन वर्षा हो। आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। You know, I still can't figure this out, by the way. This thing of the logic of not making Devendra Fadnavis chief minister. I mean, he's got 103 MLAs behind him. I mean, come on. Sir, It's very skewered. It's When like, before the government was formed, when Amit Shah came in Mumbai, he says, and he openly declared that something's going to happen. He says, betrayal will not be tolerated. Yeah, right. So the focus is straight clear Yeah, but that it's we over. want to create It's been over a year, and let us see what the honourable Speaker of the Assembly does. If he declares Mr. Shinde and his followers, 16 followers, disqualified, then naturally you'll have to look for Sir, another guy. what you are saying, even Uddhav Sena doesn't believe it is going to happen. so, in fact, somebody has filed a petition in the Bombay High Court on Uddhavji's Dasera rally. जी। He says he has questioned the integrity and character of the Chief Justice. So, I mean, it is too much to believe that, you know, this kind of independent, sturdy, independent, and you can judicial integrity and all Right, these and things. at the really moment work. with us, our very old friend, Mr. Nasir Hussain, after a long time from the Congress Party. Nasir Hussain साहब, नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवारजनों को, सब लोगों को माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद आपको बनी रहे। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पूरी नेशन नाउ की पूरी टीम से हर कोई यही पूछता है कि नासिर साहब वापस कब आ रहे हैं, क्या हो गया है, कितने दिन हो गए नहीं आए, क्या बात है। तो आपके घर में धन वर्षा हो, ऐसी धन वर्षा हो, ऐसी धन वर्षा हो कि सारी उम्र आप धन बांटते फिरें। जबरदस्त रहेगा वो, सबसे बढ़िया बात वो होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। सो नासिर साहब, सर पहले तो ये बताएं। मसरूफियत इतनी है कि ओवरसीज कांग्रेस का भी प्रोग्राम रहता है, उसके लिए बाहर आना जाना अक्सर लगा रहता है, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्शन नजदीक है, ओवरसीज वोटर हमारे बहुत हैं। तो आज अभी आपकी सर, आपकी अभी ड्यूटी कहाँ पर है? आप कांग्रेस में आप हैं तो कहाँ है ड्यूटी अभी आपकी? आज तो मुंबई में हूँ, मगर अभी राजस्थान 2 दिन में निकलने वाला हूँ। वंडरफुल। तो राजस्थान में तो आप जीतने वाले हैं, जो अभी रिपोर्ट आ रही है हमको। इसके बावजूद के एनडीटीवी का जो अभी सर्वे आया था वो दिखा रहा है। आप राजस्थानी क्यों कह रहे हैं? हम तो 5 स्टेट की तरफ दावत है। नहीं सर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये तो पक्का है। और जहाँ तक तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना का जहाँ तक सवाल है, ये जरूर है कि कांग्रेस विल प्रोबेबली इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बट बिकॉज ऑफ द AIMIM, BRS may overtake you. That is a scenario that we have got at the moment. मिजोरम के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है साहब। सर BRS, BJP और AIM, they are the same, they both are the same। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के एक ही पहलू है, कोई अलग नहीं है।
आप देखिए ईडी के ऑफिसर्स आज कहाँ कहाँ घूम रहे हैं जी। और बीआरएस की बच्चियों पे, इनकी लड़की को अब आज ईडी ने क्यों नहीं बुला रहे? क्योंकि वो खामोशी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट उनको है। आज ईडी पे इतनी बड़ी कार्रवाई थी मगर वो खामोश हो गई ईडी। आखिर बीआरएस की चीफ की क्यों नहीं उनको बुलाया जा रहा है? आज ममता बनर्जी के भतीजे को बुलाया जाता है, दूसरे लोगों को ईडी ऑफिसर जहां जहां इलेक्शन हो रहा है, अशोक गहलोत साहब के फैमिली मेंबर्स पे जा रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच जा रहे हैं। जी तो यहाँ ईडी कितनी खामोशी अख्तियार क्यों कर लेती है? सर, आपके लिए तो मेडल है। यही एआईएम के ऊपर ना जाने कितनी बयान हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सुना है, बड़ी बड़ी बातें सुनी है, देशभक्ति की बातें सुनी है, मगर इतिहास के पन्नों में जब देखिए तो ये पाकिस्तान परस्त ये लोग थे, आज इनसे मोहब्बत है, इनके यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंचती? मैं पूछना चाहता हूँ। ये बोलते हैं ना बाय चॉइस, मैं बाय चॉइस इंडिया में रहा, तो कब बाय चॉइस इंडिया में थे? इनसे पूछना चाहिए। रजाकत गवर्नमेंट जब हिंदुओं के और मुसलमान दोनों को कत्ल कर रही थी हैदराबाद में, और पूरे आंध्रा तेलंगाना जो भी आज का है, उस वक्त ये लोग किसके साथ थे? ये लोग तो पाकिस्तान परस्त लोगों के साथ थे, हैदराबाद निजाम के साथ थे। तब तो ये आज ईडी इनके दरवाजे पे, इन पे क्यों नहीं हमला करती है? आज इनके भारतीय जनता पार्टी उन दिनों पे इनको क्यों नहीं गिनाती है जितना ये हम पे गिनाने पे इनकी पूरी पार्टी, पूरी मीडिया से लगी रहती है। आप तेलंगाना की बात कर रहे, इसलिए मुझे थोड़ी याद आती है, तेलंगाना में इन्होंने कब वहां के विकास के लिए बात की, वहां के किसानों के लिए बात की? उन्होंने सिर्फ बोला एक अति पिछड़ा को मैं वहां ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दूंगा जीत के। अरे आप ओबीसी पे क्यों नहीं हमला करते? क्यों नहीं बीआरएस पे बोलते? आपकी पूरी ताकत कांग्रेस के ऊपर है। क्यों? क्योंकि आप उस पाकिस्तान परस्त के साथ हो जो वो रजाकत गवर्नमेंट उस समय जब 47 के समय हिंदू मुसलमानों के कत्लेआम कर रहा था, पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहा था, उसको आज सपोर्ट कर रहे हो। आज उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? तो हम एक पार्टी है, हम पहले भी बोलते थे हम क्रांतिकारी पार्टी है, हम क्रांति की बात करते हैं, हम हर जब भी बात करते हैं तो मंडल से लेके कमंडल की बात करते हैं। आप सिर्फ ओबीसी के एक मुख्यमंत्री बना सकते हो पर ओबीसी के विकास नहीं कर सकते हो। सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो मैं आज भी कहता हूं बाबा साहब अंबेडकर की होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं कहा हमारे समाज के लोग पार्लियामेंट में जाएं, विधानसभा में जाएं। उन्होंने अपने समाज के लिए गांधी जी से कुछ डिमांड की थी तो उन्होंने बोला था हमारे समाज को एजुकेशन दे दो, हमारी एजुकेशन से हमारी समाज डेवलप हो जाएगी। आज आपने क्या किया? इंग्लिश और हिंदी में वार किया। आपने गरीबों के बच्चों को हिंदी के किताब पकड़ा देते हो। आपको मालूम है बाहर में जाने के लिए, अच्छी जॉब के लिए इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, हर अच्छे जॉब के लिए इंग्लिश की जरूरत है। तो अमीरों गरीबों का देश बनाया तो आप महात्मा गांधी की सोच पे हमला करते हो, उस अंबेडकर साहब की सोच पे हमला करते हो। जो बाबा साहब अंबेडकर कहते थे हमें एमएलए एमपी नहीं बनना, हमें बनना है तो एजुकेशन बनना है। आज कितने दलित समाज एजुकेशन में, कितने दलितों समाज को आपने एजुकेट करने का काम किया, उस पे बात करो। तो आप बात करोगे इस नफरतों की बाजार में मोहब्बत की हम दुकान खोल रहे हैं तो आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। बात करना है तो मुद्दों पे बात करो। मैं पहले भी कहता था, अब भी कहता हूं, बीआरएस की बात करो। बात करना है तो एआईएम की बात करो, उनकी कमियों की बात करो। कांग्रेस ना भी वहां सत्ता में है ना सत्ता में थी, तो आप हम पे एलिगेशन लगाने से बेहतर है कि आप बीआरएस और एआईएम की बात करो जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और बैक फायर का काम, बैक सपोर्ट का काम कर रही, उस पर बात करो। उनके यहाँ ईडी ऑफिसर भेजो। जो ईडी ऑफिसर आज खामोश है, वो ईडी ऑफिसर आज हमारे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो घूम रही है वो दरवाजे पे क्यों नहीं पहुंच रही है? ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहिए। ये नहीं सवाल करना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया। सवाल यह है कि आज आपने तेलंगाना में क्या किया। आज 9 साल से आप सत्ता में हैं, आपने तेलंगाना को क्या दिया है? इसका जवाब आज पूछने का दिन है सर। नासिर सिन्हा साहब, आपने अभी अंबेडकर जी का बात किया कि यू टेल दैट, बट ये सही है कि अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, नेहरू जी और इंदिरा जी, ये आपका विरासत, कांग्रेस का विरासत है। कांग्रेस, इट इज कांग्रेस। तो क्या धीरे धीरे आपको नहीं लग रहा कि सरदार पटेल को बीजेपी ने ले लिया, उनके बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बना दिए? सरदार पटेल, महात्मा गांधी को क्लीन सफाई अभियान में इस्तेमाल करके महात्मा गांधी को भी
मोदी जी ने और बीजेपी ने अपने आइडियोलॉजी में शामिल कर दिया। धीरे धीरे अंबेडकर जो आप कह रहे थे, बिकॉज अंबेडकर एक बड़ा मूवमेंट है, भले राहुल गांधी जी बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं कि 84% ओबीसी SC ST को अपने पास रखे, बट क्या आपको लगता है कि मोदी जी वहां पर इनरोल किए, अंबेडकर में भी आइडियोलॉजी में इनरोल कर दिए है, उनको भी आइडियोलॉजी को अपना रहे हैं बीजेपी के अंदर? तो विरासत में आपको जबरदस्त चीजें हैं, बट यू हैव नॉट बीन एबल टू होल्ड देम। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? बिकॉज आप तो एक अच्छा स्टडी करते हो पॉलिटिकल साइंस का। क्या आपको लगता है कि अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल जो क्रूशल थे कांग्रेस की आइडियोलॉजीज को, उसको बीजेपी ने अपने आइडियोलॉजी में शामिल कर दिया? हाउ डू यू सी सर? कैसे देखते हो सर आप? नाज़िर हुसैन साहब, मैं बताऊं, सरदार पटेल साहब की विरासत को कभी कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो विरासत हमारी है और रहेगी, क्योंकि सरदार पटेल की सिद्धांतों पे क्या भारतीय जनता पार्टी विरासत कहते किसे है प्रदीप जी, कि उनके सिद्धांत, उनके आइडियोलॉजी पे जो पार्टी चलती हो। सरदार पटेल साहब ने जो आइडियोलॉजी, जो रोशनी इस देश को दी, क्या उस रोशनी पे वो चल रहे? सिर्फ मूर्तियां बना देने से पार्टी कोई बड़ी उनके विरासत को नहीं ले सकती है। ये वही सरदार पटेल जी हैं जो RSS पे बैन लगाया। इन्होंने कहा था भले सबूत ना मिलती हो, पर महात्मा गांधी के कातिलों में इनका नाम है। महात्मा गांधी के कातिल जब ये घूम रहे थे तो ये मिठाइयों के डब्बे बांट रहे थे या खुशियां जश्न मना रहे थे, सरदार पटेल ने इन्हें कातिल कहा था। तो क्या उस बात को एक्सेप्ट करेंगे? सरदार पटेल के सिद्धांतों पे चलना इनके बस की बात नहीं है। हम सरदार पटेल साहब हमारी विरासत के मजबूत स्तंभ हैं, और इसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर हो, मौलाना आजाद हो। मौलाना आजाद जेलों के सलाखों में रहे, फिर भी उन्होंने कभी इनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा। उनकी बीवी की इंतकाल हो रही थी, डेथ हो रही थी, बीमार थी, लोगों ने कहा कि आप पेरोल लेके बाहर चले जाइए, तो यही वो मौलाना आजाद है। तो बोलते थे मुझे कि आज मैं इनके आगे क्षमा पक्ष नहीं लगाऊंगा, इनसे माफी मांग के मैं बाहर नहीं जाऊंगा। भले हमारी वाइफ जितनी भी तबीयत खराब हो, चंद दिनों के बाद उनकी वाइफ इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, तब उनसे कहा जाता है कि आप फिर अभी पेरोल लेके चले जाइए जनाजे में। तो मौलाना आजाद का आंसर सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएगी। मौलाना आजाद क्या कहते हैं? हमें चंद दिन की आजादी नहीं चाहिए, जो हमें आजादी चाहिए तो सब अपने पुराने वाले जनरेशन के लिए चाहिए। ऐसे चंद दिन की आजादी को मैं ठोकर मारता हूं। अब बताइए, जिसकी बीवी जनाजे पे लाश पड़ी है, कब्र उधर पड़ी है, जिनके घर में कोई देखने वाला नहीं, वो ऐसे थे हमारे मौलाना आजाद, जो अपने देश के लिए देखिए अपने माफीनामा नहीं लिखते हैं, पेरोल नहीं लिखते हैं, आजादी के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो एक वो थे इनके जिसकी ये आइडियल मानते थे, जिसको बोलते थे हिंदुओं के हीरो हैं, वो अंग्रेजों के सामने माफीनामा नाकर रगड़ता है, वो नाके रगड़ता है। ऐसे थे। आप बताइए कौन सी विरासत पे हमला करेंगे? हमारी विरासत वो शानदार विरासत है। जब तक ये देश रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, हमारी विरासत कायम रहेगी। हम कल भी जिंदा थे, हम आज भी जिंदा है, हम कल भी जिंदा रहेंगे। ये हम कहते हैं। हम क्रांतिकारी पार्टी है, हमने लड़ा है इस देश के लिए, हमने मरे हैं, हमारे पूर्वजों ने जाने दी है, हमारे लोग लड़ते हैं। ये किस तरह से हमारे विरासत को ले सकते हैं? आपके पास दिखाने को कुछ है तो दिखाइए कि आपके आइडियल ये नेता है। आप मत दिखाइए कि कांग्रेस की विरासत आपकी विरासत। अगर चलना है तो उनके आइडियोलॉजी पे चलो, चलना है तो उनके बताए हुए रास्तों पे चलो, चलना है तो सेकुलरिज्म पे चलो। हिंदू मुस्लिम ये दंगे, ये फसाद, ये बंद करो, तब आप बोल सकते हो विरासत है। हम पे विरासत पे तुम नहीं छीन सकते, क्योंकि हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है। कांग्रेस बनना आसान नहीं है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है, हिंदुस्तान की आत्मा है। उस पे तुम कोई यहाँ पर एक चीज है नासिर साहब, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। और राहुल गांधी जी ने भी एक बार नहीं, ना जाने कितनी मर्तबा अपने भाषण में कहा है कि भाई हम लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो आप किस खेत की मूली हैं, आप क्या कर लेंगे? जो अंग्रेज बर्फ की सिल्लियों पर लटा करके हम लोगों के हमारे पुरखों को जो यातनाएं दिया करते थे, आप लोग कौन हैं? छोड़िए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, और हमारे आदरणीय सामान्य बहुत जबरदस्त बड़े बड़े चैनल हैं, वो उस प्रोपेगेंडा को भोंपू की तरह हर जगह पर फैलाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज की तारीख में एक नई प्रथा चली है, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चाइना के एजेंट हैं। ये क्या है? ये जरा बताइए। चलिए बेहतर जवाब देता हूं। हम चाइना के एजेंट हैं, ये जैसा कहते हैं,
चाइना जाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, वहां की पीएमएल के साथ अलायंस करने वाली कौन सी से पार्टियां हैं? यही आरएसएस, यही भारतीय जनता पार्टी है। जब नरेंद्र मोदी साहब को वीजा अमेरिका का नहीं मिलता था तो चाइना सबसे ज्यादा दौड़ने वाले कोई थे? नरेंद्र मोदी थे। उस आप छोड़ लीजिए, हमारे जवानों को शहीद करने वाले ये चाइना के लोग, उसके बाद भी गुजरात के अंदर चाइना को जमीन किसने दिया है? 2 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए मीटर में जमीन। चाइना की कितनी कंपनियां को इन्होंने जमीन दिया है? आपके पास डेटा होगा, मैंने कई बार इसका खुलासा आपके सामने पहले कर चुका हूं, तो इसलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करना। तो ये चाइना के एजेंट तो ये खुद है। आप बताइए चाइना से कितने इंपोर्ट को इन्होंने रोका है? दिवाली आई है ना, तो ये फुलझड़ी, ये झड़ी, उस पर बात करेंगे। कौन सी चीज है जो इन्होंने चाइना से रोकने का काम किया है? अरे हम कहते हैं आप कभी किसी देश के नफरत में नहीं बजाते। आप चाइना के एजेंट हमें साबित करना है तो आपकी पारी एजेंसियां है, आप साबित करो। हमने देश के खिलाफ कौन सी कदम उठाई? हमने जब भी बात की, मोहब्बत की बात की, हमने डेवलपमेंट की बात की, हमने आपके नफरत को उजागर किया, तो हम पे आप बोलते हो चाइना के एजेंट हो। चाइना से सबसे ज्यादा दोस्ती आपकी, झूला झुलाने वाले आप, गुजरात बुलाने वाले आप, उनके साथ दोस्ती निभाने वाले आप है तो आज उनके साथ डिप्लोमेट रिलेशन खत्म कर दो। आपके पास चाइना से इतनी ये है तो क्यों नहीं करते? मगर नहीं करोगे क्योंकि सिर्फ नफरत फैला रहे हो। चाइना का जब भी इलेक्शन आएगा तो चाइना पाकिस्तान को ये लेकर आएंगे, कभी असल मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, जरा सुनिए गौर से। नीतीश कुमार की एक बात चली कास्ट सेंसस की, आप वो मुद्दा कितना पिछड़ गया इस देश में, मैं ये देख रहा हूं 2 दिन से। उनकी 1-2 बातें हो सकती है तलफ्फुज अल्फाज बोलने में गलत हो, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी, मगर वो मुद्दा हिंदुस्तान की फ्रंट लाइन न्यूज बनती है। आखिर ये न्यूज क्यों नहीं बनती कि बिहार के अंदर ये जो सेंसस किया गया है वो क्या कह रहा है, वो क्या बता रहा है, वो सेंसस का रिपोर्ट क्या खाली ये नहीं बता रहा है कि ये जात है इतना, ये जात है इतना, ये जात, ये भी बता रहा है कौन सी जात कितनी गरीब है, कौन सी जात सबसे निचले स्तर पे है, कौन सी जात कहां है। तो हमारे देश के गृह मंत्री जब जाते हैं बिहार तो बोलते हैं मुस्लिमों की आबादी ज्यादा दिखा दी, तो यादवों की आबादी ज्यादा दिखा दी। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, बिहार में तकरीबन 17 साल आप सत्ता में रहे, आज बिहार गरीब क्यों है? ये सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिहार के अंदर गरीबियां इतना क्यों है? आज हर जाति, आपको हैरानी होगी कि 13 करोड़ लोग वहां रहते हैं, 13 करोड़ में अपनी साधन सिर्फ 1 करोड़ लोगों के पास है, 12 करोड़ लोगों के पास कोई कन्वेंस नहीं है। इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है? 9 साल सत्ता में रही है, क्या वो जिम्मेदार नहीं है कि आखिर वो लोग क्यों गरीब? ये सेंसेक्स वही रिपोर्ट पेश कर रहा है जो इन्हें बेचैनी कर रहा है। ये कास्ट सेंसस को छिपाने के लिए दूसरे मुद्दों को मीडिया उछाल रही है। उनकी अल्फाज रॉन्ग हो सकती है, कहने का तरीका गलत हो सकता है, पर कहने का सेंस गलत नहीं था। जो उन्होंने कहा वो सच था, उसे समझने का काम नहीं किया गया। उसके लिए उनकी जितनी निंदा करनी थी उन्होंने कर ली, मगर जो सेंसेक्स कहना चाह रहा था वो छिपा लिया। आज बताइए 13 करोड़ लोग गरीबी में क्यों है बिहार के अंदर? उसका जवाब कौन देगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या 17 साल बिहार में सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है? यादवों की ज्यादातर आबादी वहां गरीब है, क्या वो नहीं है? भूमिहार जिसे सबसे अमीर जाति कहा जाता था वो सबसे गरीबी रेखा के नीचे चली गई, क्या उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये लोग नहीं है। आज सेंसस को छिपाने का, आज बोलते रिजर्वेशन का आग देश में लग रहा है, सभी लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं, पर रिजर्वेशन देके करोगे क्या जब सत्ता में लाओगे? क्या नौकरियां है? नौकरियां दोगे कहां से? आज एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ हुआ जा रहा है रिजर्वेशन के नाम पे। मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूं ओबीसी, मराठा के समाज खड़ा हो रहा है, मराठा समाज ओबीसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जबकि महाराष्ट्र की कोई भी पार्टी आज मराठा समाज के खिलाफ नहीं है। सारे पूरी पार्टी मराठा समाज के साथ है, फिर भी आज उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार ने एक आईना दिखा दिया कि क्या सेंसस, वो सेंसस आज देश में लागू किया जाए तभी कोई रास्ता निकल सकता है, नहीं तो लेकिन नासिर साहब एक मिनट, जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जातीय आधार पर सर्वेक्षण जो हुआ है बिहार में उसकी आज आलोचना कर रही है, लेकिन जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी वो तो सरकार में थे, नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी थी। अरे इन्होंने तो अनाउंस किया था कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। और दूसरी चीज है,
जो 2011 का जो सेंसस हो चुका है, विच इज अ कास्ट बेस्ड सेंसस, अरे उसके फिगर्स रिलीज करो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो? 2011 का कास्ट सेंसस है, उस लागू कर सकते हैं। और आपके पास पूरी साधन है सर, 2011 का तो है ही है। आप जब इस देश में इलेक्शन कमीशन पूरे देश में इलेक्शन एक साथ करा सकता है, तो आप कास्ट क्यों नहीं उसका आप डेटा ले सकते हो कि कौन किस कास्ट का है? आप क्यों नहीं जनगणना कराना चाहते हो? क्योंकि आप नफरतों की बाजार बजाना चाहते हो। आज आप देख लीजिए ना, 5 स्टेट में इलेक्शन है, कोई डेवलपमेंट का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ रही हो तो बताइए। जिस इलेक्शन में प्रचार कर रही है प्रदीप भाई, बहुत मायने की बात कहता हूं, आप ध्यान दीजिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक चीज पे वोट मांग रही है, वो कह रही है राम मंदिर हम बनाते हैं। सिर्फ राम मंदिर के नाम पे देश में वोट मांग रहे हैं। 5 राज्यों का उनका इलेक्शन का एजेंडा सिर्फ राम मंदिर है, कोई दूसरा एजेंडा फिक्स नहीं कर पा रहे। आखिर क्या मजबूरी? क्यों नहीं सेंसेक्स पे बात कर रहे हैं? क्यों नहीं अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं? क्यों नहीं करप्शन पे बात कर रहे हैं? क्यों नहीं हमारे किसानों पे बात कर रहे हैं? क्यों नहीं हमारे महिलाओं पे बात कर? इन्होंने 33% रिजर्वेशन लाया, उस रिजर्वेशन के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि उन्हें मालूम है इस रिजर्वेशन से महिलाओं की कोई तकदीर और तस्वीर नहीं बदलने वाली है। ये 33% रिजर्वेशन सिर्फ इलेक्शन का एक एजेंडा होता है। जो महिला इलेक्शन लड़ेंगी उनके लिए क्या ये 33% से उन महिलाओं के नौकरी में तब्दीलियां आएगी या उनकी नौकरियों में जिंदगियों में बदलाव आने वाली? प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन पहले कहा कि देखो मैं वोकल फॉर लोकल, मैं चाहता हूं कि इस दिवाली में सब गरीब हमारे देश के लोगों, जो विश्वकर्मा लोगों, उनसे पॉटर्स है, पॉटरी है, वो खरीदिए आप। और आगे जाके कहता कि क्या कांग्रेस का कोई भी सीनियर नेता आप पूरे देश को कभी अभी संबोधित किया वोकल फॉर लोकल होना चाहिए? बोले कि कांग्रेस देखो पॉलिटिकल है, बट कांग्रेस का कहता है कि 60 साल में लापता मॉडल है। लापता मॉडल जो आप तारीफ कर रहे थे, मोदी साहब का कहना है कांग्रेस का मॉडल लापता मॉडल है, जो बिजली, सड़क लापता, पानी, रोजगार लापता, घर लापता, फिर किसान के जो कल्याण स्कीम्स है वो लापता। तो मोदी जी का कहना है कि एक मैं ही हूं जो मेड इन इंडिया को प्रमोट करता हूं, और उन्होंने कहा कि जितने लोग हैं इस देश का, आप सामान लोकल खरीदिए, फोटो लिखकर नमो ऐप में उसको पोस्ट कीजिए, और इससे आप दिखेगा कि आप लोकली बहुत सेल्फ आप प्रमोट कर रहे हो कि लोकल गुड्स को। और कांग्रेस का लापता मॉडल, बोले कि ये 60 साल में कुछ नहीं किए, ये सिद्ध हो गया है। तो ये 2 दिन पहले ही मोदी साहब ने कहा लापता मॉडल। हाउ आर यू गोइंग टू काउंटर इट? नासिर हुसैन साहब, लोकल फॉर वोटर बोल के लोकल फॉर ये बोल रहे, आप पूछिए लोकल में ये पिछले 9 साल से बोल रहे, क्या प्रोडक्शन किया है जो देश के जो लोग लोकल ले रहे हैं? आज भी मार्केट में चाइना की पूरी दुकान सजी हुई है। आप दिवाली में निकल जाइए तो लोकल फॉर आपको मालूम पड़ जाएगा कितने लोकल शॉप में क्या बिक रहा है, क्योंकि आपने इतनी उनके पास फैसिलिटी पैदा ही नहीं किया कि वो प्रोडक्शन यहाँ कर सके। चंद प्रोडक्शन हो रहा है मगर ज्यादातर बाहर पे आज हम डिपेंडेंट हैं। और हमसे पूछते हैं सवाल कि हमने क्या किया, तो मैं सोचता हूँ कितना काउंट करूंगा मुझे मालूम नहीं। 2014 में ये सरकार आ गई, कितने हॉस्पिटल्स बनाए, इस हॉस्पिटल्स का एक नाम मुझे याद है, अगर आपको याद हो तो आप लोग जर्नलिस्ट हैं, मुझे बताइए कौन सा हॉस्पिटल इस देश में बना है। मुझे तो याद नहीं आता है कोई बड़ा हॉस्पिटल इस देश में बना हो। मैं अपने आसपास में भी जाके सोचता हूँ, कभी घूम के आया तो मुझे नहीं दिखा। मैं कई राज्यों में जाता हूँ मगर वहां भी नहीं दिखता है। तो इन्होंने क्या बनाया है 2014 के बाद? चलिए मैं पूछता हूँ, यूनिवर्सिटीज बनाया हो तो चलो यूनिवर्सिटी का भी नाम ढूंढ लिया जाए, वो भी नहीं मिलता है। सेंट्रल स्कूल बनाया हो, हाँ एक आध स्कूल हमने जो पहले हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था उसकी ओपनिंग जरूर इन्होंने किया है, पर इन्होंने कुछ बनाया है तो बताइए। इन्होंने किसानों की आय पे बात करते हैं, इन्होंने कहा था हम दुगनी आय कर देंगे। आज तक एमएसपी के लिए रोड पे बैठे रहे, आज भी किसान आंदोलन करते रहे, किस पंजाब में कर रहे हैं, कर्नाटका में कर रहे हैं, मराठवाड़ा में हो रहा है, क्या उनको दाम मिल रहा है? अरे आज किसानों को पानी मराठवाड़ा में नहीं मिल रहा है, कई जगह उनको आज ब्लैक में बीज बिक रहा है, किसानों को बीज नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। अब तो हम किसानों की कर, अभी बोलते हमने ग्रामीण इलाकों में चुनाव जीता है महाराष्ट्र में। अरे बेवकूफो, तुमको चुनाव जीते हो? ये कोई पार्टी सिंबल पे इलेक्शन था, जो जीता ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा करके तुम काउंटिंग गिना सकते हो, मगर क्या वो पार्टी सिंबल पे इलेक्शन होता है? वो एक व्यक्तिगत व्यक्ति का इलेक्शन होता है, उसमें कोई बाद में क्योंकि सत्ताधारी के साथ होते हैं लोग बोलते हैं हाँ मैं इनका सपोर्टर हूं, मैं कोई वो व्यक्ति कोई पार्टी लाइन का इलेक्शन नहीं है।
इन्हें मालूम नहीं ग्राम पंचायत का इलेक्शन क्या। ये बोले नहीं, इस शहरों में घूमने वाले लोग हैं तो गांव के हालात को नहीं समझेंगे। जब पार्टी सिंबल पे इलेक्शन होता है तो उसकी एक काउंटिंग होता है। ये एक वन साइडेड है, लोग आते हैं अपने लोगों के बीच में लड़ते हैं, आपस के इलेक्शन होता है, वो जीत के आते हैं, फिर वो किसी को समर्थित बोलते हैं, हम इनके साथ हैं उनके साथ हैं। कोई पार्टी सिंबल पे वोट मांगता है क्या? तो इन्हें मालूम नहीं, इन्हें गांव के किसानों की तकदीर तस्वीर नहीं बदलनी है, उनका वोट जरूर ले लेना है। आप उनको एमएसपी क्यों नहीं देते? क्यों नहीं अडानी के करप्शन पे बात करते हैं? क्यों नहीं एलआईसी के करप्शन पे बात करते हैं? क्यों नहीं एसबीआई के करप्शन में बात करते हो? क्यों नहीं वो 20,000 करोड़ की बात करते हो? क्यों नहीं किसानों की आय दुगनी हो गई उस पर बात करते हो? क्यों नहीं सब सवालों को लेकर आते हो? तो आप राम मंदिर पे बात करोगे। राम मंदिर बन गया, अब राम मंदिर से क्या है? राम मंदिर सबकी आस्था है, कोई आप अकेले के नहीं है, राम पूरे हिंदुस्तान के हैं। जितना आपके हैं उतना हमारे हैं, जितना प्रदीप जी के होते हैं नासिर हुसैन के भी है। तो फिर इसमें मसला क्या है? राम मंदिर पे क्यों वोट मांगना है? मांगना है तो इन विकास पे मांगो, डेवलपमेंट पे मांगो, लोगों नौजवानों के रोजगार अगर मिल रहा है उस पे मांगो। उस पे आप वोट नहीं मांग सकते क्योंकि आपने किया ही नहीं है। आपने अगर किया होता तो बता सकते हैं। चंद रोड बनाते हो तो उसमें घोटाला है। आप बताइए, नितिन गडकरी साहब का घोटाला निकल गया, ये भारतीय जनता, ये हमने नहीं, सीएजी ने निकाला है। तो आप बताइए, एक रोड बनाने में 250 करोड़ रुपए एक किलोमीटर में आप खर्चा करते हो भारतमाला प्रोजेक्ट में, तो आप हमसे करप्शन की नासिर हुसैन साहब, राम मंदिर के बाद आपने किया, राम मंदिर के बाद 22 जनवरी 2024 नासिर हुसैन राम मंदिर की बात नहीं करता। मैं बोल रहा हूं, अगर सुनिए ना, अगर राम मंदिर, बिकॉज जनवरी में राम मंदिर का निर्माण है, मई में इलेक्शन है, और पूरे दुनिया में आज प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहा है कि ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हूं मैं, आई एम एन ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, और फर्स्ट बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं, देवेगौड़ा साहब भी थे, बट फर्स्ट ओबीसी प्राइम मिनिस्टर। और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, अगर ये जिस प्रकार से जा रहे, प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करने वाले, एक ओबीसी, तो क्या एक पूरे माहौल चेंज नहीं होगा पूरे देश में? बिकॉज राहुल गांधी जी बहुत कह रहे जातीय जनगणना ओबीसी इश्यूज, अब फोकस पूरे ओबीसी में। अगर प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का 550 साल के बाद एक ओबीसी व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा करता है, तो क्या एक पूरे रेवोल्यूशन नहीं होगा पूरे देश में? आप इसको कैसे देखते हो? ये मोबिलाइजेशन नहीं होगा बीजेपी वोट्स का, जो राहुल गांधी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी वोट्स अपने पास आए, मेहनत कर रहे, बट ये एक एक्शन में क्या ओबीसी समाज संतुष्ट नहीं होगा कि हमारे 550 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ओबीसी? ये आपका सवाल थोड़ा बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसलिए मैं थोड़ा अलग बोलता हूँ। आप क्यों राम मंदिर को ओबीसी से मिला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक मैं उस पर भगवान सिर्फ ओबीसी के हैं या मोदी जी के हैं या क्या, मैं उस पर थोड़ा डिटेल में बोलता हूँ। ओबीसी की बात 1979 से लोग कर रहे थे, तकदीर बदल देंगे, मोरारजी देसाई साहब के समय से, शायद मैं गलत हूँ आंकड़ा मुझे मालूम नहीं, 1979 में ही शायद ये आवाज उठी थी, तो 1980 में आया, फिर 92 में, 90 के आसपास में ये लागू होता है। तो क्या तब से लेके 79 से लेके 90 तक ओबीसी की कितनी तकदीर बदली, जिसके नाम पे ये लोग वोट बैंक मांगते रह गए। आप राम मंदिर आज ओपनिंग करने जा रहे हैं, उस पर मैं बोलता हूँ, मगर आप बताइए 90 के बाद ओबीसी 27% रिजर्वेशन की बात थी, कितना बदल गया उनको? रोहिणी कमेटी का रिपोर्ट है कि सिर्फ 5 से 6% रिजर्वेशन का उनको फायदा मिल रहा है। एक प्रधानमंत्री एक ओबीसी से बन जाने से पूरे ओबीसी की कम्युनिटी तकदीर, पूरी कम्युनिटी चेंज नहीं हो जाती है। कोई एक एमएलए एमपी बन जाने से उस समाज, मैंने क्यों शुरू में आपको बोला बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, हमारे लोग एमएलए एमपी बने या ना बने, हमारे समाज के लोग एजुकेटेड जरूर हो, एजुकेशन जरूर हो, शिक्षित जरूर हो, तभी वो अपना फैसला लेंगे, उन्हें समाज में एक जगह मिलेगी, वो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल हर तरह से बेहतर होंगे। जब तक एजुकेशन नहीं आएगा, कोई हमें में एमएलए बन जाए, एमपी, एक एमएलए एमपी बनने से एक परिवार उसका सफल हो सकता है, पूरा समाज नहीं बना सकता। तो बार बार मैं बोलता हूँ एजुकेशन। आप बताइए, आज ओबीसी का एक प्रधानमंत्री जाके वहां ओपनिंग करते हैं, राम मंदिर के दरवाजे पे जाते हैं, तो क्या पूरे एक ओबीसी ही जा सकते हैं? वो प्रधानमंत्री के रूप में भले जा रहे हो, मगर क्या वो ओबीसी ही जा सकते? क्या पूरे देश के लोग वहां नहीं जा सकते? क्या दूसरे जातियों के लोग नहीं जा सकते? हम ओबीसी की क्यों, आज ओबीसी को रोहिणी कमेटी बता रही है सबसे गरीब होता जा रहा है, तो इनको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? राम मंदिर के दरवाजे पे ये जाते हैं प्रार्थना करने से, क्या ओबीसी के पूरी समाज चेंज हो जाएगी?
उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं बार बार तो राम मंदिर की बात ही नहीं है, राम जितने आपके हैं उतने हमारे हैं, हम सब राम को मानते हैं, हमने कभी नहीं राम के खिलाफ थे। ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं कि कांग्रेस राम के खिलाफ रहे, हम भगवान राम की तब भी साथ थे और हम क्या रहेंगे, भगवान राम हमारे साथ थे, हम उनकी उतना ही आस्था करते हैं जितना ये करते हैं। हम यही कहते थे कि जो भी फैसला हो कोर्ट से हो, आखिर वही हुआ, कोर्ट से ही फैसला हुआ। जब तक समाज कोर्ट पे भरोसा ही नहीं करेगा, समाज को आप बरगलाने लगेंगे, सिर्फ यही कहेंगे कि ओबीसी का प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री ओबीसी का। चलिए ये तो बात हो गई, आपकी बात जो है वो समझ में आ गई सबको जो आप बोल रहे हैं, और उसमें कोई विवाद का, जो आपने कहा है उसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। एक ओबीसी प्रधानमंत्री या कोई 25 या 26 मंत्री बनने से ऐसा नहीं है कि जो जिस ओबीसी समाज से वो आते, कोई ओबीसी समाज कोई, इट इज नॉट अ कंप्लीटली ओपेक वन होल यूनिट। The OBC community itself consists of various communities. Now let's not get into that. What I'm trying to ask you is this: in terms of what is happening today in छत्तीसगढ़ में चुनाव का प्रोसेस शुरू हो गया है, पोलिंग शुरू हो गई है। राजस्थान में मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। नासिर हुसैन साहब, आपको तो कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज आपके नेताओं के पीछे छोड़ दी हैं। मतलब मुझे लगता है कि घबरा गए हैं मतलब लोग आपको। आई थिंक यू मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस कुछ ठीक कर रही है। छत्तीसगढ़ की जब बात निकाल ले आया, शायद आप ईडी के तरफ इशारा या पता नहीं क्या, तो और मैं बोलता हूँ तो और किसकी तरफ होगा सर? मैं समझ रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप, आई थिंक ऐसे ही कुछ ऐप का नाम है, ऐप महादेव ऐप है जी हाँ महादेव, 530 करोड़ या कितने करोड़ रुपया बोलते हैं उसने हमारे मुख्यमंत्री को 508 करोड़ कैश में, 508 करोड़ कैश में, ठीक है जी। अब वो कैश में कैसे लाया मुझे मालूम नहीं है भाई। 508 करोड़ कैसे फिट होते हैं सर? नहीं, मुझे नहीं मालूम वो आंकड़ा कितना है, जो भी हो। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, वो महा ऐप की बात मैं करता हूँ, पर किस महा छत्तीसगढ़ में हमने क्या ऐलान किया है तो उस पर बात कर लेते हैं, फिर उस पर हम आते हैं। क्या किसानों के कर्ज की माफी की बात हमने की, नौजवानों के रोजगार की हमने बात की, धान पे एमएसपी की बात हमने की, केजी से पीजी तक, यानी कि नर्सरी से लेके पीजी तक फ्री एजुकेशन। मैंने पहले शब्द में कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर को कोट किया था कि वो एजुकेशन की बात, हम पीजी से लेके केजी से पीजी तक हम समाज को एजुकेशन देना चाहते हैं। यहाँ कोई जात की बात है? यहाँ अगर कोई दलित भी पढ़ेगा तो ब्राह्मण भी पढ़ेगा, मुस्लिम पढ़ेगा तो सिख भी पढ़ेगा, क्रिश्चियन भी पढ़ेगा। यहाँ कोई जात धर्म की बात नहीं की, कोई रिजर्वेशन की बात नहीं की। हमने 500 रुपया पर आदमी सिलेंडर देंगे, यहाँ कोई जात पात की बात नहीं है। तमाम नागरिक को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। मिल रहा नहीं, अभी मिलेगा, अभी इसके लिए भी अभी नया हमारा जो आ रहा है। फिर लघु याद पे 10 लाख रुपया हम लोग को देंगे एमएसपी पे। आप बताइए, 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दे रहे हैं। सड़कों पे अगर घटना हो तो उसका मुफ्त इलाज है, महिलाओं के लिए है, जाति जनगणना भी हम वहां करेंगे, तब हम पता चलेगा सेंसेक्स क्या है, वहां के रिपोर्ट निकालेंगे। ये कहते हैं ना आप महादेव ऐप, आप बताइए पूरी एजेंसी इसके साथ है, पूरी एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की। एक 508 करोड़ का ट्रांजेक्शन इतना इजी वे में हो जाए और भारतीय यहाँ की हिंदुस्तान के एजेंसियों को मालूम ना हो, तो इनकी नाकामी है। आखिर उसको दुबई कोई बहुत दूर नहीं है, उसको उठा के लाना चाहिए कि बताओ कैसे तुमने दिया है। खाली एक वीडियो बना देने से, किसी पे एलिगेशन लगा देने से आप कहते हैं कि 508 करोड़ रुपया हमने मुख्यमंत्री जी को दिया है। उसके लोगों को किसी ने अरेस्ट किया तो हमने ही किया, हमारी सरकार ने किया। उनके जेलों के राखों के पीछे हमारी सरकार, रमन सिंह तो उसको प्रमोट करने में लगे थे, इनके मुख्यमंत्री तो उसको प्रमोट कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री ने उनको जेलों में डाला, उसके कारोबार पे हमला किया तो दुबई भागकर बैठा है। उसको दुबई के थ्रू उसको लाना चाहिए, तो ये आज जाके इलेक्शन में इसको प्रचार करे। आप बताइए कि छत्तीसगढ़ के लिए आपके पास योजना क्या है, वहां के लोगों के लिए आप क्या करेंगे? पिछली सरकारें थी, आपने कुछ किया नहीं, तब तो हमें चुनी ना। आप निकम्मेपन हुए, आप फेलियर हुए, तब हमें जनता ने वहां देखा और हम जनता को दे रहे हैं। आप 30 साल तक आप वहां छत्तीसगढ़ में आने वाले नहीं है, जिस तरह छत्तीसगढ़ का माहौल आ गया, क्योंकि आपने आदिवासियों को कुछ किया नहीं। आज तक आदिवासी को आपने प्रमोट नहीं किया। आदिवासी आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बने हैं सर।
आपने बोला ना, कहीं उनको आपने आगे लाने का काम किया, आदिवासियों के लिए काम नहीं किया, दलितों के लिए काम नहीं किया, तो कौन से हक से आप जा रहे हो वोट मांगने? आप जाइए, आपकी काम है प्रचार करना, प्रचार करिए, पर हिंदुस्तान की आवाम जान चुकी है कि आपसे अब कुछ ना होगा, होगा तो कांग्रेस से ही होगा। कांग्रेस ही कुछ करेगी, वही देश बचा सकती है, क्योंकि हम क्रांतिकारी पार्टी हैं। हम जानते हैं हम कैसे हम देश में तब्दीलियां लाना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे नफरतों को खत्म करना है, हमें इल्म है इस बात का। तो अभी नासिर हुसैन साहब, मोदी साहब आज ही यानी कहा कि देखो मैंने कितना काम किया है, एमएसएमईज को जितना बढ़ाया हूं वो मोदी साहब ने बढ़ाया। इसे मोदी साहब कहते हैं कि आई हैव स्ट्रेंथेंड द एमएसएमईज को तगड़ा मजबूत बना दिया। 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट किया। मोदी साहब का कहना कि 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट एमएससीज को प्रमोट करके, स्ट्रॉन्ग करके हमने जनरेट किया। उस 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट में 3.4 करोड़ वुमन एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। तो ये वुमन एम्पावरमेंट भी हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने वाली बात है। मगर राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा यही कहा है कि एमएसएमईज को जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन और ये सब चीज को, बिकॉज आपका कैंपेन है, क्यों किया? प्रियंका गांधी पूछ रहे क्यों किया? आपने जीएसटी क्यों किया? आपने डीमोनेटाइजेशन क्यों किया? तो ये अलग अलग जो एक्सट्रीम्स है, मोदी साहब कह रहा कि हमने किया, ये अच्छा किया, एमएसएमई जनरेट किया है इतना सारा करोड़। तो कैसे देखते हो, असलियत क्या है नासिर हुसैन साहब? जिन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो अच्छा काम किया है जीएसटी का, अच्छा काम किया है नोटबंदी का, तो उस पर वोट मांगना चाहिए ना कि मैंने ये अच्छा काम किया, मेरे को इस पर वोट दो। कभी आपने सुना इलेक्शन में उसकी बात करते हैं, किसी मीडिया उसमें आते हैं, उस पर चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि उनके नोट की लाइफ भी जो 5 साल ना हो, वो क्या हमसे बात करेंगे? जो 2000 के नोट भी 5 साल नहीं चला सकते, उनकी नोट की लाइफ नहीं है, उनकी क्या वो बात करते? जो अच्छा काम करते उस पर वोट मांगना चाहिए। हमने जो अच्छा किया हम उस पर बताते हैं कि हमने ये अच्छा किया है, हमने आईएम बनाया, एम्स बनाया, आईटी बनाया, एयरपोर्ट बनाया, रेल बनाया, तेल बनाया, रेल बनाया, क्या तो हम उस पर करते हैं, तो कहते हैं हम इस पर हम वोट मांगते हैं। पर आपने जो अच्छा किया उस पर वोट मांगो। आपने बोलो कि हम नोटबंदी ने अच्छा काम किया, क्या इससे आपकी जाने गई या नहीं? लेकिन उसका तो जिक्र नहीं है सर, उसका कोई जिक्र नहीं करता। हाँ, आपने कहा कि जीएसटी मैंने लगाया उससे अच्छा हुआ है, उस पर वोट मांगो, नहीं मांगोगे। आपने अभी आपके पास कोई एजेंडा है ही नहीं कि जिस पे आप वोट मांग सकते हो। तो जो काम बेहतर नहीं करते हो तो आपके पास जवाब नहीं होता है। आप बोलते एमएसएमई से हमने इतने करोड़ नौकरी जनरेट कर दी है, जबकि सेंसेक्स खुद इनकी नीति आयोग का रिपोर्ट बोलता है कि 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो अभी है। तो कैसे रोजगार जनरेट होंगे? बैंकों का डाटा आता है कि 10 से 15 हजार रुपए का लोन इनको, क्या 10 से 15 हजार रुपए के लोन में सबसे ज्यादा 80% लोन 15 से 20 हजार का लोन एमएसएमई में इन्होंने दिया है। किसी को 2 लाख 1 लाख भी दिया। पर क्या 15-20 हजार में कौन सा बिजनेस एम्पायर खड़ा होता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूं कौन सी एम्पायर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? वो चंद दिनों में वो दुकानें बंद हो गई, सबसे आखिरी सांस ले रही है नौजवान बेरोजगार। आज देखिए, भले बीजेपी के कई वोटर हों, आप उनसे कैमरा ऑन कैमरा सवाल करिए तो बीजेपी की जरूर तारीफ करेंगे, पर पूछेंगे क्या बेटा आपको रोजगार मिला है, क्या आपके भाई को रोजगार मिला है, तो वहां पे वो खामोश हो जाते हैं, बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हमारे पास काम नहीं है। ये वो कहने लगते हैं। आखिर उनके वोटर भी इस बात को जानते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। आखिर क्यों? तो कौन सा डेटा है उनके पास कि हमने 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया? मैं समझ नहीं पाता। पूरी दौलत 1% लोगों के पास है हिंदुस्तान की, 99% लोगों के पास कुछ नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को बाहर लाया? अरे हमने फ्रांस से बोलते हैं हमने 23 करोड़ लोगों को 2012 में हम ऊपर लाए, तो हमारे पास डेटा है और हम साबित करते हैं। पर आपके पास डेटा है तो लाओ, पर नहीं है। 50 साल से ज्यादा, 50 साल, आप समझ रहे कितनी गरीबी है? आजादी के समय के बाद इतनी गरीबी अभी देख रहे हैं लोग, हैरानी कर देने वाली बात है। लेकिन अभी तो डेटा रिलीज ही नहीं हो रहा सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। 13 करोड़ नौकरी जनरेट, बट वेयर इज द डेटा? नासिर साहब, at one time, I'm asking you the very simple question. How is possible? 13 करोड़।
But where is the data, sir? At the moment, I have no, कोई है ही नहीं डेटा, कैसे देंगे? but they don't release the data these days. For the last 5 years, They cannot we have release, not got any data. They cannot release because they have no data. They say only lie. वो सिर्फ झूठ बोलते हैं. उनके मैं पास उम्मीद कुछ करता कहने को हूँ, नहीं है. मैं उम्मीद करता हूँ जब आपकी सरकार आएगी देखिए, तो आप हमारी- असलियत सामने रखेंगे, बुरी हो या अच्छी हो. मैं उम्मीद करता हूँ. मैंने कहा जो हम कहते हैं वो करते हैं. हमने बोला कि पुरानी पेंशन योजना करेंगे, हमने करके दिखाया. Wonderful. चाहे वो कर्नाटका हो, हिमाचल हो, आने वाली दूसरी स्टेट हो, हम पुरानी पेंशन देंगे. आखिर इन्होंने पुरानी पेंशन को क्यों बंद किया? क्यों नहीं लागू? करो इलेक्शन, है हिम्मत तो लड़ो पुरानी पेंशन पे. आज जाके बोलते हैं बिजली फ्री कर देंगे, वो कर देंगे. जहां सरकारें वहां तुमने मदद नहीं दी है. आज जनता जानती है कि कांग्रेस क्या है. हम जो कहते हैं करते. हमने कहा पुरानी पेंशन लगाएंगे, 100 यूनिट माफ करेंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, सिंचाई का बिल माफ करेंगे, किसानों का IMSP देंगे. तो लोग भरोसा करते हैं क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमारे पास डेटा है, हमारे पास जलता हुआ स्टेट हिमाचल है, हमारे पास कर्नाटका है, दूसरी स्टेट. आप देख लो हम जो कह रहे हैं. बिहार में देखिए, जहां बोलते थे जॉब हो ही नहीं सकता. सिर्फ आपको पता होगा प्रदीप जी की बिहार से यूपी का थोड़ा सा नॉलेज आपको भी होगा कि वहां से 20 लाख सरकारी नौकरी है. बिहार में उससे ज्यादा कोई नौकरी हो नहीं सकता है. फिर भी वहां देखिए 4 लाख लोगों को नौकरी अभी मिल गई गवर्नमेंट में, और आने वाली 2-3 लाख और आने वाली है. जो कहते थे 20 लाख है, इससे ज्यादा तो दे ही नहीं सकते थे. कहां से 10 लाख नौकरियां देंगे? 6 लाख तो 4 लाख तो दे दिया अभी 2-2.5 सालों में. अभी देखिए और 2-3 सालों में मिल जाएगा. तो हम जो कहते हैं वो करते हैं. इसलिए कांग्रेस, इसलिए सच्चाई, थोड़ी सच्चाई जो होती है ना, तो ताकत लगती है बोलने में, थोड़ी हिम्मत लगती है, थोड़ा टाइम लगता है लोगों तक पहुंचने में. झूठ बहुत जल्दी से फॉरवर्ड हो जाता है, झूठ बहुत तेजी से फैल जाता है, पर सच की खुशबू आने में थोड़ी वक्त लग जाएगी. कहते हैं ना, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, मोहब्बत के सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं. यहाँ नफरत फैल चुका है, सिर्फ मोहब्बत ही है जो हम इसको फैला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, समाज को एक कर सकते हैं. नहीं तो मणिपुर को आज देख लीजिए, लोग भूल गए. मैं आज भी मणिपुर को याद करके रोने लगता हूं कि मणिपुर किस हालात से गुजर रहा है. आज भी लोग वहां तिल करके मर रहे हैं. उस पर क्यों नहीं विजिट करते हैं प्रधानमंत्री? अरे परसों इंसिडेंट हुआ हमारे सर. अपने लोग हैं वो, हमारे लोग हैं वो. अरे नासिर जी, परसों ही इंसिडेंट हुआ है वहां पे. परसों एक और इंसिडेंट हुआ है. आज भी हुआ है कश्मीर में. आज भी हमारे कश्मीर में 2 जवान शहीद हो गए. 2 दिन पहले शहीद हो गए. आए दिन शहादतें हो रही हैं, मगर हिंदुस्तान की सरकार खामोश है. वो बात अच्छी बात कर देने से देश तकदीर और तस्वीर नहीं बदलेगी. मैं पहले भी कहता था, अब भी. आप डेटा, हम जो कहते हैं वो हकीकत है. हम कोई अपनी तरफ से बना के नहीं बोलते. क्या बजाज भाई और प्रदीप जी, आज सच नहीं है कि आज हमारे जवान कश्मीर में शहीद हो रहे हैं? ये मैं झूठ कहता हूं तो आप मुझे साबित कर दीजिए. आज हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया सबका रिपोर्ट है कि आज भी 3 लोग वहां शहीद हो गए, कल शहीद हुए. आए दिन लोग जान जाने जारी. क्यों जारी? क्यों? नोटबंदी से बोलते 370 से, नोटबंदी से पूरी तकदीर कश्मीर की बदल देंगे. क्या बदल दिया? आज भी लोग परेशान हालात. Right, that's just about it. Nader Saab, we've run out of time. Thank you very much. It's been a great pleasure talking to you as always. Dynamite. आज नाजर साहब बड़े मूड में थे, इसलिए मजा आ गया उनको सुनते सुनते. आपने देखा होगा हम लोगों ने ज्यादा इंटरव्यू भी नहीं किया आपको. बहुत अच्छा बोल रहे थे आप. हमने कहा बोलिए. फ्लो में थे सर. ये चैनल है जहाँ पे हर एक को मौका मिलता है बोलने. मैं फ्लो में कोई अपनी बात नहीं रखता सर. फ्लो में मैं वही बात रखता हूँ जो आईने की तरह सच है. मैं कोई सूरज को टॉर्च नहीं या रोशनी नहीं दिखा सकता. सूरज चमकता ही रहेगा. हमने जो कहा, तो हम वो सूरज हैं जो कभी बादलों में ढक जाते हैं, मगर सूरज बादलों को चीर के भी सामने आती. तो हम चीर के लोगों के सामने आ रहे हैं. तो हम थोड़ी देर के लिए अंधेरों में जरूर छिप सकते हैं. वेरी हैप्पी दिवाली टू यू सर. थैंक यू. सेम टू यू. वेरी हैप्पी दिवाली टू यू सर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. बहुत जबरदस्त. नमस्कार. जय हिंद. जय हिंद सर. जबरदस्त. जय. Oh, well, the Congress is really in a very, very passionate mood now. Energized Oh, yes. spokespersons, youth leaders. Right, and Yes. at the moment with us, our very dear old friend, former journalist, one of the best PRs in the country, and at the moment environment activist, BN Kumar, right at the moment with us. BNK, how are you? All well, sir. Namaskar. Namaskar, happy Diwali to you. And happy Diwali to you and all of yours. And I can see lovely lights just behind you. Where are you right now? Yeah. What are those He lights? is outside the temple, Tirupati. What are those temples? The new temple of Tirupati, you've already made it? Wow! So BNK, really and truly lovely, but I'm so glad to see that you've started this lovely campaign
about the Aksa beach. They're awful wall. Why do they build walls? They build a wall at Warsaw. They've now built a wall at Aksa. What is going on? What is with these people? Why do they do that? Why do they like concretizing things? Why do they like building walls on beaches? They don't like beaches or what? Or are these chaps all from outside Mumbai or Maharashtra? They don't know what is the importance of a beach. B.N.K. Kumar sir. That's probably one of the reasons, because as we discussed earlier, these officers who come on positions at various corporations and government organizations, their tenure is for 3 years. उसके बाद में निकल जाते कहीं और चले जाते हैं. So without any attaching any motives, I can say that Mr. Saini, obviously he's not a Maharashtrian name. He was the MD, the CEO at the Maharashtra Maritime Board. He made so many proposals to build seawalls across the coast, across Maharashtra, and including our Mumbai beaches. So the one at Warsaw, of course, we discussed last time, Supreme Court gave a stay on it. Now Aksa में ये हुआ है, it's very in fact unfortunate. This wall, as it shows, it's a clear violation of the CRZ. Now the MCZMA, which gave a nod for this wall, saying you can go ahead with it without touching the CRZ area. Coastal zone area को touch मत करो. But they have built it on CRZ, as you can see, make out from the pictures. It's right there. It's right on. It's right. I think in the middle of the high tide line. Might be the middle of the high tide line. Yes. Awful. और दीवार के पीछे अभी जो ये रोड रास्ता दिख रहा है उसके पीछे भी आप डैम्पिंग देख सकते हो, यानी कि दीवार हाइटेड वहां तक जा सकती है. और उन्होंने एक आईआईटी से रिपोर्ट मंगवाई थी, उसमें कहा था कि जो इलेक्ट्रिक पोल्स खड़े हैं ना, वो पोल्स वर गेटिंग इरोडेड. इसके लिए वो हमारे पास प्रूफ है, यहाँ तक ये बीच का इम्पैक्ट हो रहा है करके. अरे पोल्स गेट इरोडेड ऑन अ सी शोर एनीवेयर, उसको रिप्लेस करते रहो ना, क्या फर्क पड़ता है. इट शोस दे बिल्ट अप टू द पोल, व्हिच मींस दे द वाटर गोस अप टू द पोल. That means they built the wall up to near touching the pole, which means they are obviously touch the high tide area. What kind of a facetious argument is that? That's a stupid argument. Now what they have done was, after our own objections, we went to NGT. NGT has asked them to ask Environment Department, MMB, to file their Government of Maharashtra to file their rejoinders, their affidavits. They have not filed. They have been given 1 month time. They have not done it. 1 month टाइम देने के बाद 3 महीना हो गया, फिर भी उन्होंने फाइल किया. उसके बाद में जो लास्ट हियरिंग हुआ था उसमें भी उन्होंने टाइम मांगा. Sorry, 1 second. Have some water. Please go ahead. बावजूद उसके फिर उन्होंने फिर से टाइम मांगा, तो उन्होंने उनको और 1 महीना टाइम दे दिया. इस बीच एमएमबी ने, आई विल से, बड़ी बदमाशी करी है. दिस वाज in fact pointing out to NGT also, because now they approached MCZMA to amend the clearance given to them, excluding the point number 1, condition number 1, which clearly says no construction in CRZ area. So they want to amend that, the very first condition, which is hilarious. Gee, this is a blatant violation. Yeah, and top of that MCZMA considers it. MCZMA अपने मीटिंग में एजेंडा में इस सब्जेक्ट को लेती है और डिस्कस करती है. वहाँ पर luckily for us, when expert member points out, let us first get the report on the extent of erosion. What kind of erosion is happening there? तो MCZMA ठीक है, let's put it, defer it to the next meeting. But MCZMA is also party to our case that is going on NGT. So they should not have taken it up. They actually amounts to contempt of court. Yes, because the NGT is a quasi-legal body. It's a quasi-judicial body. Yeah. You can't have parallel litigations going on the same subject. Yeah. You know, we want to know, B.N. Kumar ji, ये walls किसके fund से बन रहे हैं? Because कोई भी system है, the funding has to be there. Now, who's funding these walls? Now, these walls are being put, as you say, in the high tide line, in the beach. You know, an illegal project को सरकारी फंड यानी पब्लिक मनी में आपके हमारे पैसे हैं सर. The taxpayers' money, government is spending on it. Yeah, it is the public money. The government is spending public money, and public money without sanctions.
Now, environment, जो भी illegal काम है, means it is totally illegal because you have raised an objection to it. The people have asked for, the various departments concerned have asked for documentation, filing of affidavits. ये सब चल रहा है, but how did the public money be sanctioned for this project, which is illegal? Government पैसे नहीं, सरकार का पैसे है, लोगों का पैसे है, आपने यहाँ पर wall कैसे बना दिया? Which you know is not, तो कैसे ये किसका फंडिंग था और कैसे हुआ? So BNK, do tell us. Did they take anybody into confidence before building this wall? That is the Maharashtra Maritime Board, or did they just decide one fine day कि अक्सा बीच पे साहब हमें दीवार बनानी है? What happened? In fact, this is one of the questions that we raised. There is no transparency in whatever they have been doing, and they have been asking for this seawall for the past couple of years. They sent proposal after proposal. MCZMA has been sending it back saying it is going to affect the beach structure itself. In fact, their NGT का खुद का ruling है last April में उनका ruling थी in Pondicherry case, in which they clearly said don't go for this kind of walls. You have some other kind of mechanism along with the the ओशन टेक्नोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट जो है उनसे आप कंसल्ट कीजिए. जब तक आपका शोर मैनेजमेंट प्लान नहीं होता है ये सब नहीं कर सकते आप. हमारे पास कुछ प्लान नहीं है. वी डोंट नो व्हाट इज शोर मैनेजमेंट. अंधाधुन हम अपना काम करते जा रहे हैं. अभी जो सर देयर इज वन मोर बिग ब्रेकिंग न्यूज फॉर आवर व्यूअर्स इज द सिरको along with Maharashtra board तो Maharashtra Maritime board तो violation कर ही रहा है. Sirco also has been, you have seen these violations in Uran area. Yes. They have been allotting mangrove areas and wetlands left, right and center to various projects like NMSEZ, JNPT, SEZ वगैरह. We have been raising objections. और जब हमने कहा ये wetland है, उनका कैसे को कहते हैं wetland नहीं है. और mangrove cell जो है, they wanted to maintain the 5 wetlands which has been identified by BNHS, which is Belpada, Bhendkal, Panje in Uran, NRI wetlands and TS Chanika wetlands in those Ramsar sites, right? Yeah. Yes. Yeah, those not Ramsar sir. Ramsar site is आपका Thane mangrove Thane Creek Flamingo Sanctuary. That is Ramsar site. So these 5 lands are supposed to be protected as satellite wetlands of the Ramsar site. जी. Supportive. जब यहाँ पर पानी भर जाता है 15 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी भर जाता है तो Flamingo cannot stand there. So Flamingo has they keep flying to other areas. These are the 5 wetlands where then the flamingos go. ये कुछ बर्ड्स आपके पिछले साल के दिखाई दे रहे सिनेरियो जी. तो सिरको जब मैंग्रोव सेल खुद ने लिखा व्हिच इज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मैंग्रोव सेल राइट्स टू सिरको कि वी वांट टू कंजर्व द 5 वेटलैंड्स एज नेम्ड बाय बीएनएचएस. तो आप आपका ओपिनियन दीजिए. सिरको बोलता है गो टू हेल, दे आर नॉट वेटलैंड्स. हु टोल्ड यू दे आर वेटलैंड? दे आर डेवलपेबल लैंड पार्सल्स बोल दिया सीधा, बिकॉज दे ऑलरेडी अलॉटेड 286 हेक्टेयर वेटलैंड टू पांजे वेटलैंड टू एनएमएसईजेड और गोल्फ कोर्स बनाने के लिए 2 वेटलैंड आपके एनआरए और टीएच चाणक्य में दे दिया और एक वेटलैंड आपने जेएनपीटी को दे दिया और भेंटकल एनएमएसईजेड को दे दिया. एनएमएसईजेड उसको बर्बाद कर दिया, ऑलरेडी पूरा भर दिया उसको. द वेटलैंड डज नॉट एग्जिस्ट नाउ. ये वेटलैंड दिस इज भेंटकल वेटलैंड सर. दिस डज नॉट एग्जिस्ट नाउ. जी. Now coming back to this beach only, we wanted to know the level of corruption and which departments are involved. Because if it is in Mumbai, you got the BMC a party to it, and then you got various agencies who are planned approved. तो वो funding वाला issue इसलिए जरूरी है कि which government department has funded, because you can plug these kind of illegal activities henceforth in many of the beaches जहाँ भी इनको करना, because probably they want to, like in Juhu beach में था कि एक create कर दो और एक 50-100 दुकान वहाँ पर बना दो and then becomes a business center. So we want to understand the level of corruption within various departments. You got the BMC involved, BN Kumar, and who are the people who funded the particular wall? Funding is done by MMB, Maharashtra Maritime Board, which is again government of Maharashtra's organization, and that is basically taxpayers' money. As regards your point about corruption, I mean, it is there for all of us to see. So, what is the level of corruption? What kind of things are happening? That is a matter of investigation. Since the case is, as it is already pending in front of NGT, I would not like to go into most of the details because let the judges decide. But let me ask you a detail, a small little detail. I can see that wall right there, right? That's the Aksa Beach wall. In fact, last time when we presented this picture, yes,
No. Last time when we presented this picture to the NGT, the judge himself asked us, "What is this? Is it a seawall or a motorable road?" It is In the a middle of the motorable beach. road. Motorable road, you know. No, but my point is something different. Now, is the attempt to prove, say, 5 years later, that construction should be allowed beyond the seaward line, towards the land, from the wall? Is that the idea? That was what the CRZ, the MCZMA permission said. Build Yes. it towards the landward side, not towards the seaward. Yes. But landward side में already there are a lot of properties there, a lot of houses, etc. And we have not heard of any complaints from anybody, either in public domain or private domain, saying because of the beach my wall is getting affected, मेरे घर में पानी आ रहा है. So why this wall? What is the logic being presented by the Maharashtra Maritime Board with regard to this huge wall? I mean, it's at least 10 feet wide, as I can see. It could not be only because the electric poles are being, corroded. Is that the only argument? I mean, that was one of the things that they presented to the court, to the NGT. So the electric poles are being corroded, therefore we need a wall which is about 6 foot high and 10 feet wide. And Yeah. God knows travels how many kilometers. And about more than half a kilometer. As things stand, it's about 700 meters. 700 meters, which is almost 1 kilometer, which is Close to 3/4 of a kilometer. And then you have a motorable road there on side of the land, and beyond the motorable road we'll have huge commercial constructions out there. Yes, that's the idea, I think. That is what we saw in various beaches. I will tell you, if you see the original plan of MMB that was presented to MCZMA, they wanted to have kiosks, they wanted to have some क्या बोलते हैं उसको wooden structures, not wooden, bamboo का बना हुआ entertainment recreation centers, some kind of what you call volleyball court, parking area. Basically, they want to commercialize it. So you have a parking area, you have a casino, you have restaurants, you have bars, you have other things all along the area. Is that it? If you see that area, in that area, you can do anything. Right. बहुत कुछ हो सकता है If you have a road out there, you relax most of the CRZ restrictions. Anyway. So it becomes easy to commercialize the area immediately. You got a road before us. हाँ, So we have a road. अच्छा इन लोगों ने actually it will not stand legal scrutiny because by building this road they push the high tide line. That's illegal. They can't do that. That's But of right. course. So कहने का मतलब you are being I am asking you a general philosophical question. आप ये बताएं, मुंबई के जितने बीचेस हैं, जितनी भी चौपाटी है मुंबई की, these are areas which people don't realize. They are not just beautiful areas. These are areas which are actually absorbing the force of the sea. And these are environmentally very, very delicate and sensitive areas which support ecosystems of their own. Yes. आज की तारीख में मुंबई शहर बचा हुआ है इन चौपाटियों की वजह से. Yes. अब आप उनको अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज अ प्लान टू डिस्ट्रॉय ऑल बीचेस इन मुंबई. हर जगह पे आप कंस्ट्रक्शन करिए, हर जगह पे आप फिर जैसे जुहू बीच है, उसके अलावा दादर का है, और फिर उसके बाद माशाल्लाह गिरगाम चौपाटी है, उसको भी आप डिस्ट्रॉय करेंगे. वहाँ पर आप 2.5-3 लाख रुपए पर स्क्वायर फुट की आप इमारत बनाइए और उसको बेचिए. इज दैट द प्लान फाइनली? Is that what the city is going to look like at some point of time once the coastal road gets completed? Obviously, because once this gets through, Yes. then they can do it anywhere. They will say as a It's a precedent. president, and हमने कर दिया और करो, and उसका अभी the kind of real estate value that it can command, Pradeep and RKB you can make out. We're concerned because just beyond the road we can have a lot of shops out there. Yeah. Just touching the road because we they- totally neutralize your CRZ restrictions for quite some time and मालूम पड़ा उस रोड का डांबरीकरण हो गया और लोग इस्तेमाल भी करने लगे. And there's no debate. It's under use. I mean, जो भी आप कहोगे. Now the biggest problem is the state itself has said you have been fighting for the Tirumala temple coming there. You're talking about the breach.
the ecological calamity that might come along with it. The state has also seen that plastic waste in the sea, along with the dredging waste, destroying mangroves in Uran that you've been always fighting. 50,000 tons of plastic waste in cities' mangroves. The government also has reported 20 tons of plastics in the sea, 1 lakh cubic meter of dredging waste. Now these are all very dangerous kind of reports that are emanating, and you are among the lone few warriors who are fighting that you need to save the environment, you save the economy, you save the sea from all this kind of plastics and sewage. Now what is the status where Tirumala temple is concerned? The dredging waste inside the seas are concerned, the plastic waste inside the seas are concerned, because New Mumbai, Thane, they all seem to be very virgin areas. You know, a lot of places are still out for destruction. How are you trying to preserve these places? Yeah, Pradeep, you're right. It's a very big, serious issue, which is why I think we have been campaigning for making environment an election issue, because environment concerns you, me, and everybody. The man walking on the beach behind you, man traveling in the train. Because हम लोगों ने experience किया है 2 बार massive floods in Mumbai because of your landfills etc. and killing of the mangroves. उड़न में पिछले 20-25 साल में बिल्कुल बाढ़ का नाम ही चीज नहीं थी. अभी वहां पर बाढ़ आना शुरू हो गए. So everybody is experiencing it, and environment concerns everybody. हम कहते हैं कि our city our duty, ये सबका काम है, ना सिर्फ environmentalists, environment lovers like me और नंद कुमार पवार, स्टालिन, जोरू बथियाना, या फिर मीडिया आरकेबी, प्रदीप और बाकी जैसे मिड डे, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिस्ट्री वगैरह है. इन सबका तो है ही to alert people, but ultimately it boils down to you and me, the ordinary man. अब कल मैं एक जवान पिक्चर देख रहा था, उसमें शाहरुख खान का बहुत जबरदस्त डायलॉग था, ये वाला उंगली. You know, this ungli, when you use this ungli for putting your indelible ink, use the same ungli for asking questions. Point out करो, ये तुम क्या कर रहे हो? When will I get my hospital? When will I get child may get education? मैं ये और एक शब्द इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप मेरे environment के लिए क्या करने वाले? What are you going to do about my mangroves? What are you going to do about my wetlands? What are you going to do about? But BNK, this is committing suicide. ये आपने जो शाहरुख खान साहब की जो बात करी है, वो जबरदस्त था. वो जो उन्होंने मैसेज दिया है जवान पिक्चर से, वो तो माशाल्लाह इट इज फैंटास्टिक. तो ऑल आई एम सेइंग इज कि ये तो भैया मतलब पूरे मुंबई शहर की आत्महत्या का मतलब पूरी योजना है ये क्या है ये? मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं. तभी मैंने आपसे सबसे पहले सवाल ये पूछा, जो मैंने सवाल पूछा था कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने जो महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के जो हजरत हैं जिन्होंने ये इसकी सैंक्शन करी है, क्या वो मुंबई महाराष्ट्र से हैं? डज ही नो व्हाट इट इज टू प्रिजर्व अ कोस्ट एंड व्हाट इट इज लाइक टू लिव इन अ कोस्टल सिटी? or are they from, you know, wherever they are from, and they know nothing about Mumbai? Could that be a reason for what these chaps are doing? I mean, without getting into regionality or we'll be accused of being parochial, because you and I are not Maharashtrians. तो ये अपने उंगली भी उठेगी. उसके man, keeping these things aside, our basic argument is that none of the officers sitting in their seats of power are serious about environment. They don't care. You know, BN Kumar, you wanted to make this an election issue, but I want to know, because जो wetlands आप protect करने के लिए लड़ रहे हो, वहाँ तो कोई रहते ही नहीं है, वहाँ पर कोई है ही नहीं. ये तो डेवलप करके बाद में लोग सेटल होने वाले हैं, वही पूरे आपके एनक्रोच होने वाले हैं, वाटर बॉडीज को एनक्रोच करेंगे. So I want to ask you, how are you going to make an election issue and you think that you will succeed? Because I think right now for you the recourse is only these control, pollution control boards, MGNT, जो भी आप बात कर रहे हो, agencies who are there for this election issue से, because वहाँ पर लोग रहते नहीं हैं, it's going to be encroached, then it will be going to be occupied, it will be turned into a commercial sector, and then you have the people coming into their places. Right now it's your lone battle. It's a lone battle of some lone warriors among you, where the government and the government of the day never thought there's going to be an opposition, because they know nobody resides there. Sir, हम wetland occupy कर लेंगे, develop कर देंगे, उसके बाद लोग आएंगे, फिर problem. How are you going to make an election issue? Basically by
increasing awareness among the people. People should ask. Suppose कल कोई suppose I am the political candidate today. I come to your house asking for my vote. आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, आपने ये बोल दिया, एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहे हो बताओ मुझे. मेरे यहाँ पर एयर पोल्यूशन, अच्छा, मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड्स इज नॉट द ओनली इश्यू इन एनवायरमेंट. आपने प्लास्टिक की बात करी, अभी AQ है, एयर पोल्यूशन इतना जबरदस्त हो गया है, उसके बारे में पूछ सकते हैं. एनवायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड यू एंड मी. तो अभी जैसे आपने अभी वेटलैंड्स की बात बताई, आई टेल यू इन अ कपल ऑफ सेंटेंसेस हाउ सीरियस इज दिस इशू एंड हाउ वी वेंट टू द यूनियन, वी वेंट टू प्राइम मिनिस्टर एंड देन माय रिपिटेशन वाज रेफर्ड टू द आई मीन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो हमने ये बताया था उनको कि हमारे जितने भी सारे वेटलैंड्स है, 5 वेटलैंड, दे आउट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एयरपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. कल को समझो देयर इज अ बर्ड हिट, खुदा न खास्ता देयर इज एयर क्रैश, doesn't become a big issue, it will become an election issue. लोग बोलेंगे यहाँ पर नई मुंबई एयरपोर्ट इज नॉट सेफ. तो ऐसी चीज़ों को लाके हम कर सकते हैं. तो जब हमने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को, प्राइम मिनिस्टर से ध्यान उस पर आकर्षित किया था कि वेटलैंड्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, और आपने अमृत सरोवर बनाया, कुछ 75,000 अमृत सरोवर बना रहे हैं आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक करके अमृत काल के लिए. उनको भी तो प्रोटेक्ट करो, डिक्लेयर करो एज अ वेटलैंड कंजर्वेटिव. नहीं तो आप जाने के बाद उनके ऊपर भी कोई ऑक्युपाई कर लेगा. There'll be real estate development on that. So that issue प्राइम मिनिस्टर मोदी है रेफर टू एनवायरमेंट डिपार्टमेंट. वहां से हमें रिप्लाई आया, उन्होंने कहा कि वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ऑल द वेटलैंड स्टेप बाय स्टेप. अभी आपको एक छोटी चीज बता देता हूँ, आंकड़े जो है, these they are the government owned statistics. This is the wetland numbers of wetland that have been identified by the ISRO satellite, and these are the map is there, the atlas is there on the environment department website. 7.5 लाख को कुछ वेटलैंड उन लोगों ने आइडेंटिफाई करी, उसमें से 2.5 lakhs दिस आर मेजर वेटलैंड्स. मेजर वेटलैंड्स यानी which are of the size of more than 2.5 hectares. उससे बड़ा जो भी है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. And when Vanshakti went to the Supreme Court gave a clear-cut ruling. These have to be protected by at any cost. And this ruling came about 3-4 years ago. बावजूद उसकी वेटलैंड डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसमें ओनली 1275 वेटलैंड ही वहाँ पर लिस्टेड है, आइडेंटिफाइड एंड नोटिफाइड. 2.5 लाख वेटलैंड के मुकाबले में सिर्फ उतना ही है. हमने कहा बाकी कब कर क्या कर 2.5 लाख के बनस्पत 1000 कितने बताया आपने? 1274 1274. बस एक तरफ 2.5 लाख 1274. कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड आपको करनी थी, सुरक्षित आपको रखना था 2.5 लाख के करीब वेटलैंड्स को. और वेटलैंड्स की जो खुद की साइट है उसमें कहा गया है कि सुरक्षा दी गई है, प्रदान की गई है सिर्फ 1274 को. तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2.25 लाख के 2,40,000 जो हैं वेटलैंड्स वो खत्म हो जाएंगे. क्योंकि आधे तो हमने देख चुके हैं, यहाँ पर हो चुके. Mumbai, there is a report last what you call for 20-30 years we lost more than 1/3 of wetlands of Mumbai. So and then we complain about AQI. Then we complain about the fact that we are suffering from so much of pollution. You know, BN Kumar Sahab, Thane mein you got the CM of Maharashtra. He stays in Thane. That's here, and you are very close. All the environmentalists, mostly whom we interact with, in Navi Mumbai and Thane, because that is most, प्रिजर्व करने बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपका, और बहुत जगह है बचाने लायक, बिकॉज मुंबई में तो कुछ भी बचा नहीं है, एवरीथिंग इज गॉन. सो दिस लास्ट लिंगरिंग वेस्टेजेस थोड़ा आप बचा सकते हो. 35 lakes in Thane, 35 lakes, city of lakes Thane. Now we expect that केजरीवाल जी ने शायद दिल्ली में बहुत सारे रिफॉर्म्स लिखे हैं, and he saved a lot of lakes, reformed, revived them. Now I think आप बगल में बैठे हो, you can convince this chief minister of Maharashtra that the 35 lakes out of which 15 are excess toxics, that totally 15 are totally toxic, उसको कैसे revive करके preserve करना. I think you got to challenge there, because it might happen, because you are all there in Thane, Navi Mumbai, and there's every possibility the chief minister is a very aggressive, proactive person. आप उनको कन्विंस कर पाए तो यू कैन डू वंडर्स विद ठाणे, नवी मुंबई. हैव यू ट्राइड इट सर? एक अच्छा गुड सजेशन प्रदीप जी, काम कीजिए, आप उनको एक दिन कार्यक्रम में बुलाइए, कॉल हिम टू आवर चैनल, लेट्स हैव अ फेस टू फेस टॉक विद हिम. और कॉल एटलीस्ट आदित्य ठाकरे. आपने इतना प्रॉमिस किया था एज अ मिनिस्टर
अभी you are in the opposition, you can point out things. आप आदित्य को I think the better thing would be to convince Mr. Eknath Shinde to Yes. go on a wetland tour with us excellent. and actually show him what CITCO is doing, what JNPT is doing, what the other guys are doing Yeah. right there, so that he can, actually look at it for himself. Because if you remember, we had gone with you, I think that was 3 or 4 years ago, and areas which had never been flooded, even at the worst rains, were being flooded now. Correct. आप आए थे कुंडे, that was Kunde area, yes. Yes. So all I'm saying is, at some point of time, somebody will have to wake up if we want to preserve and protect our city. The rest of the population is so busy in earning a living and just getting home and getting to the office that they don't have time for all this. That's what is saving all these guys who are trying to destroy our city. And as far as the richer people are concerned, they're too busy in God knows what. Accumulating money. Either accumulating wealth, or where will the wealth go? After all, you remember BNK on 26th of July, what happened? I mean 2005 26 जुलाई को क्या हुआ साहब? आपके पास जितनी भी वेल्थ थी वो सारी की सारी वेल्थ आपकी धरी रह गई जब आपकी गाड़ियां डूब गईं और आखिर में सबको अपनी गाड़ियों से बाहर निकल के उसी पानी में मुंबई की सड़कों पर चलना पड़ा आखिर में. तो मेरा ये कहना है कि अभी तक अगर आप जागेंगे नहीं तो कब जागेंगे? एंड व्हाट इज मोर, द अदर थिंग which is even more shocking is that nobody is even talking about the fact that for the first time South Mumbai is flooding. आज तक अभी साउथ मुंबई में पानी इस तरीके इस कदर भरता नहीं था. जब से ये कोस्टल रोड का काम शुरू हुआ है तब से आप देखिए एकदम पानी भरना शुरू हो गया है अलग अलग जगह पर. सो वेयर आर वी हेडिंग? बीएन के साहब बताएं, व्हाट इज द विजन? And unfortunately, all these projects are happening. All the violations are taking place at a time. World over, we are talking about the rising sea levels. Instead of getting prepared with a disaster management plan, हम क्या कर रहे हैं और समुद्र के अंदर कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं. As you said in the beginning, it is suicidal. Yes, we are preparing for suicide. That's what we are preparing for. Maybe the old Parsi prophecy that by 30 or 2040 Mumbai will be drowned by the sea might actually take place. I'm not trying to harm people. 2050 का तो वैसे फोरकास्ट चल रहा है. The way glaciers are melting, the way. मगर 2050 से पहले आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है. 35 लेक्स, बीएन कुमार जी, वो ठाणे creeks are turned into wasteland, untreated sewage water being pumped into it. Swachh, and the biggest, and most of you have been saying that Swachh Bharat has to spread beyond streets, beyond the roads to the water bodies. Then only you can save. Because I think, forget 2050. I think 2030, if you don't do anything right now, your entire ecology where Thane, Mumbai, Navi Mumbai is concerned, we are in for a shock. It will become a desert. आपके वेटलैंड्स कैप्चर हो रहे हैं, आपके क्रीक्स में सीवेज जा रहे हैं, अनट्रीटेड सीवेज जा रहे हैं, आपके मैनग्रोव्स में आप प्लास्टिक वेस्ट 50,000 टन्स के हिसाब से जा रहे हैं. तो you're talking at an ecological disaster. You don't have to wait for 2050. Pradeep, it might happen 2020, probably 2030 could be a date of the. Pradeep, don't forget the landfills. Don't forget Exactly. Don't forget the mountains of garbage being created in the landfills everywhere. And all that is also going to get into the sea at some point of time, if it is not done already. So, B.N. Kumar Sahab, we are looking at a situation which could be catastrophic. B.N. Kumar Sahab. एक और चीज बताता हूँ. One more shocking thing that we have come across recently. There is a township called Ghansoli which is coming up in Navi Mumbai. वहाँ पर last year there was a सिडको टेंडर प्लॉट्स वहाँ पर गए थे 3 लाख रुपए से ज्यादा पर स्क्वायर मीटर. In its upcoming high market kind of up market kind of a scenario, वहाँ पर there is an STP, sewage treatment plant. That plant was shut intermittently और वहाँ से untreated sewerage पानी, untreated sewer, आपका बाथरूम का, टॉयलेट का, किचन का जितना भी पानी है पूरा शहर का, पूरा एरिया का, सीधा समुद्र में जा रहा था. 30 million liters a day per liter water. 30 million of untreated sewage. Unsewage going straight into the sea. कारण क्या है? The plant was being shut. Why was it shut? Because part of the land on which plant was built
there is a land dispute. It was taken away from the local landowner. सिडको ने उससे उसको ऑफिशियली कुछ मुआवजा नहीं दिया. They have not officially acquired the land. The revenue department, the government. या बावजूद उसके सिडको ने दादागिरी करके वहाँ पर अपना बिल्डिंग प्लांट बना दिया. और प्लांट बनाने के लिए लैंड उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्लांट बना दिया और बोलते हैं हमने प्लांट बना दिया है, गवर्नमेंट का लैंड है. Who are you to ask for it? बोलता है 7-12 उतारा दिखाया वो फैमिली बोलती है हमारी लैंड है. How can without giving compensation how can you use this land? वो आके आंदोलन किया वहाँ पर, बंद होगी प्लांट. हमने आवाज उठाई मीडिया में, हमने फिर चीफ मिनिस्टर को लिखा, चीफ मिनिस्टर टू the urban development secretary, the collector, everybody. Then municipal corporation put some security and now running the plant now. That is a, I mean, आज नहीं तो कल फिर प्रॉब्लम उठ सकता है. It's a monumental problem. You were saying the whole area's untreated sewage is going into the sea. My goodness, what are we looking at? Lekin Pradeep ji, I'm surprised. Why does this not come under the ये- Essential Services I mean, Act? That you cannot remove this because this is essential इस for तरह the से- safety and security of the people living in the area. Everybody fish, वहाँ पर कितना एक्वाकल्चर है, फिश है, क्रैब्स है. और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ नई मुंबई के लिए सीमित है. जैसे ठाणे क्रीक टचेस मुंबई एंड द अदर साइड. आपका देवनार, गोवंडी, बाकी मुंब्रा उस साइड पूरा ये क्रीक टच होता है. इट मिक्सेस विद अरेबियन सी टुवर्ड्स योर नॉर्मन पॉइंट इन चौपाटी एंड नॉर्दर्न सबर्ब्स. Yes, it spreads everywhere. And we're also concerned about the garbage dumps. The Yes. whole Mumbai city's garbage dumps all being still dumped in one particular places or few places, and the accumulation of garbage and allowing it to be like that, or just you can't burn it, you can't. I mean, we are looking at, you don't know what 2050. I think 2030 is going to be a red mark where ecology and protection of ecology and how Mumbai and neighboring cities are affected, districts are affected. It's going to be monumental. In fact, the environmentalists like you have got a monumental task of trying to convince the government And the people. and the people. And I think on our behalf, we will definitely write immediately to the CM and seek a meeting, and we could have a program together with you and all the other environmentalists about the 35 lakes, the creeks, the dredging waste into the seas, the untreated waste into the seas, because you got a CM is proactive, and since he's staying in Thane, things might happen very fast. BN Kumar ji. सही बात है. Let's at least go and meet him first. You take let your nation now can take the leadership. Let's go and meet the CM. We'll convene him for a roundtable on the whole thing, a day-long roundtable, calling all the stakeholders. Let there be proper minuting all the things. We'll make presentations on what's happening and what are the prime issues. Brief presentations we can make. The 3, 5, 6 of us, in fact half a dozen of us can come there. We can make a presentation and let's have a day-long roundtable on this issue. It's a good idea. Let's go ahead with this. Right, BNK, thank you very much. All the very best to you and keep up the good work. That's all that we can say. I hope you succeed. You succeed, all of us survive. Yeah. If you don't succeed, as Pradeep ji said, maybe by 2030, we'll have to say goodbye to Mumbai. That's what's going to happen. Right, thank you so much. Thank you. Thank you very much and very happy Diwali to you. Happy Diwali to all of you. Thank you. Bye-bye. Namaskar. Vande Matram. Right, now that's just about it for the show. आज का सिर्फ इतना ही. तो हमारे चिंतामणि खारकने साहब, उनको किसी मीटिंग के लिए जाना था. I think he'll join us tomorrow. Fantastic. So, well, you can please subscribe to the channel, share the channel, and like it, and do keep sending in your comments. अगर response आप भेजें. We have very few comments today, so we will not be taking them. आज comments नहीं देंगे. We will take them up tomorrow. आप सब लोगों को एक बार फिर धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप सब लोग खुशहाल रहें, शांति से रहें, सुखद रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें. From both Pradeep ji and myself and the entire team at Nation Now, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.